today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtanga Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. अब आप सोच रहे होंगे कुंभक योगी क्या होता है, राइट? कुछ लोगों ने तो नाम सुना होगा कुंभक का, बट कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा. तो आइए बढ़ते हैं आगे कि कुंभक के बारे में और जानकारी हमें कैसे मिलेगी और ये हमारे जीवन को कैसे चेंज करेगा या बदलाव लाएगा हमारे करंट प्रॉब्लम से. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine not only in India but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. इन सभी डिजीजों का हमें पता है that allopathy has no answer. आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है. There is no U-turn to these diseases. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtanga Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way is our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of a human body. चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये वेबिनार आखिर है किसके लिए. Surprising, no? The question कि वेबिनार किसके लिए है? Of course, the webinar is not for everybody. It is only for people who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their current health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa. Freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the 8 शरीर. अब आप सोच रहे होंगे शरीर तो एक ही है जो हमें सबको पता है as a layman, but actually the human body is made up of these 8 softwares और इन सब शरीर का अलग अलग फंक्शन होता है. So let me just brief you about this. आप आगे वीडियो में सुनेंगे स्वामी जी से कि ये शरीर आखिर हमारे ह्यूमन सिस्टम में क्या काम करता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति एंड विकृति शरीर. Excuse me. So now when we talk about the neuromuscular health issues, we are mainly concerned about the Prakriti and the Vikriti Shari. So Prakriti यानी कि regenerative factor. सबको पता है कि degeneration क्या होता है, okay? कि जब हम लोग एज करते हैं, as the body ages, the degeneration starts. यानी कि जब हम यंग एज में रहते हैं तो स्लोप ऐसे ऊपर जाता है. The regeneration factor is really really high. और जैसे ही हम 50 क्रॉस करते हैं, degeneration accelerates. अभी हमें करना क्या है, ये जो imbalance है इसी के लिए आपके जो पेन्स एंड एक्स है वो आपको समझ में आता है या आपको महसूस होता है. Now, if we try to balance the regenerative and the degenerative factor, we can easily come out of any problem. अब वो आप कैसे निकलेंगे, यही है कहानी अष्टांग चिकित्सा.
So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. जैसे अभी किसी ने बोला हैंड डिस्टोनिया, राइट? तो ऐसे कई डिजीजेस हैं जो नए नए अभी हमें समझ में आते हैं, and then we keep on and on adding our list, but this is among the common problems that we see among our participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, other nerve issue. Let's hear from Swami Raj Vibhuji what he has to say about Ashtang Chikitsa. Thank you so much for listening to me patiently. Now I'll just tell you how we will proceed in this webinar. Now you will be listening to Swami Raj Vibhuji's recorded video where you will get to know about the Ashta Sharir or the 8 Sharir and how it works on the human system, और आपका जो current problem है उससे आप किस तरह से निजात पा सकते हैं. Of course, then we will have somebody joining us live जो अष्टांग चिकित्सा के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और किस तरह से उन्होंने बेनिफिट किया है अष्टांग चिकित्सा से. Then we will be sharing the program details, and last but not the least, as you must be waiting, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to answer all your questions. तो देर ना करें, जल्दी से लिख डालें आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, along with your name and contact number, so that at the end of the webinar I can read out as many as the time permits. Thank you so much. Namaste. Over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और a sports person who has somehow damaged one knee. एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. पीपल आर स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम. देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजेनरेशन इन द जॉइंट. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण हो गया, now some person goes to a doctor
with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है? यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or
Ayurveda Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट, इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. एंड there is another aspect called विकृति. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही.
घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स. आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस. सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the five senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम. अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना. स्किन बिकम्स फ्लैबी व्हेन देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन. यू गेट स्ट्रेच मार्क्स, इजंट इट? यू नो व्हाट इज स्ट्रेच मार्क? यू गेट स्ट्रेच मार्क बिकॉज देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है. मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट. कितने लोग सीधा बैठते हैं? यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट, इजंट इट? सो देयर इज ऑलवेज, देयर विल बी, इफ यू डोंट यूज योर बॉडी proportionately, there will be disalignment.
और आपकी जॉइंट प्रॉब्लम डिसअलाइनमेंट की वजह से भी हो सकती है. देयर आर थ्री बेसिक डिसअलाइनमेंट दैट हैपेंस इन द बॉडी. 3 बेसिक डिसअलाइनमेंट है. नाभि, योर नेवल कैन गेट डिसअलाइंड, वी कॉल इट धरण. योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइंड, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कौड़ी. एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइंड, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नले इन द local terminology. Nabhi, Kaudi, Nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना. आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो. सांस रोकी आपने. इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, वो your fat tissue और adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the
डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन, हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैनॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाईं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के, by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है. तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even
people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी ऑर्गन वीक हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea, but
Material, energy, and dynamism. Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University, or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85%. It's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words,
he was not able to speak. उसका voice box related issue था. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking about now, I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no?
आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है, यू डोंट इवन नो नोटिस, बट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी. सपोज कीजिए आपके अंदर दिस फोर्स बिकम्स वीक इनसाइड यू, ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे, विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा? आपके जॉइंट पे. इट विल इंपैक्ट द जॉइंट, यस और नो? दिस हेवीनेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, STRESS. यू टॉक अबाउट स्ट्रेस, बट आपको मालूम नहीं है स्ट्रेस क्या है. यू थिंक सिचुएशन क्रिएट स्ट्रेस. नो. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So, are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So, I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना. इन कुंभक कलाचार, इन कुंभक विज्ञान, वी कॉल इट उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना. दैट मींस ऑपोजिट टू ग्रेविटी फोर्स. देयर आर 84 फोर्सेस व्हिच यू आर स्ट्रगलिंग एवरी मोमेंट फ्रॉम थ्रू. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. योर ऑर्गन फंक्शन अकॉर्डिंग टू दीज फोर्सेस. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति डायग्नोसिस. यही प्राण शक्ति डायग्नोसिस है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यासा. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti, and it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में,
कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए। आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यू विल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Okay, thank you everyone for listening to Swamiji very carefully and patiently. Now, as Ratnadi had said that we've invited some participants from our previous batches who have experienced Ashtanga Chikitsa and have benefited from the program. Neha, who do we have now? कौन है अभी जो लाइव हमारे साथ आ चुके हैं? Okay, we have Reena ma'am here. We have two Reena ma'ams here. Unmute कर रहा हूँ आपको. Yes, welcome Reena ma'am. Thank you for coming to the webinar. Thank you, sir. Please share कि आप पहले क्या situation थी, how you found this program और अभी आपकी कैसा लग रहा है आपको? Please. Hello. Yes, Reena ma'am, please go ahead. Yes, sir. Hello. Yes, yes, we can hear you. So actually, I want to start the program. I'm suffering from inflammation in retina in my right eye. Okay, so I think we have got wrong Reena ma'am because she's a previous participant. Yeah, sir, can you help me? Like, what would be the reason for the inflammation in the retina in And eye? Is there any... Swamiji will address that. Swamiji will address that. Just hold on for a second. Reena ma'am, आप सुन पा रहे हैं? Actually, I am not that Reena. I am a different Reena. In fact, I am not that. Oh, sorry. Neha, which Reena ma'am do we have? Complete name? Reena Sahu ma'am, is that you? Yes. Yeah, welcome ma'am. Thank you. Thank you. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Just you can talk about what were your health issues and how you found this program and what is your condition. Okay. 2 साल पहले मुझे नी आर्थराइटिस हुआ था, तो बिल्कुल भी मैं चल फिर नहीं पा रही थी, काफी पेन था मेरे नीज में और चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया था मेरा। तो मैं बहुत अपने आप को लिमिट कर चुकी थी और हर काम मैं कल पर टालने लगी थी। तो मैंने बहुत सा ट्रीटमेंट लिया, लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक,
and yogas and acupressure, acupuncture, बट कुछ भी वर्क नहीं किया। थोड़ा बहुत आराम मिलता था, बट अगेन वो नी पेन स्टार्ट हो जाता था। फिर मैं इंस्टा में ये अष्टांग चिकित्सा के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इतना कुछ किया है तो इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो फीस मैं देखी इसका, फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं एक बार। तो उसके बाद 3 महीने फिर मैंने अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन कर ली मैंने। तो 1 महीने में ही मुझे काफी आराम आने लगा मेरे नी पेन में। चलना फिरना बिल्कुल मेरा स्मूथ हो गया, सब कुछ मैं करने लगी अपने से, सारा कुछ ठीक ठाक होने लगा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ बाकी पार्टिसिपेंट से कि अगर ये 3 महीने में ये मिरेकल कर सकता है, तो आप जरा सोचिए कि अगर आप इसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये क्या-क्या बेनिफिट दे सकता है आपको अपनी लाइफ में। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बहुत कुछ यूज कर चुके हैं, बहुत कुछ आजमा चुके हैं, तो एक मौका अष्टांग चिकित्सा कुंभक थेरेपी को दीजिए और फीस के बारे में जरा भी न सोचें। अगर आपको ज्यादा लग भी रहा है तो मेरा ये दावा है कि ये अगर ज्यादा आप लोगों को लग भी रहा है ये फीस, तो आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, आप पछताएंगे नहीं एटलीस्ट। मेरा ये तजुर्बा रहा है इसके साथ। और चिकित्सा गुरुजी स्वामी जी न सिर्फ कुंभक थेरेपी के बारे में हम लोगों को बताते हैं, बल्कि वो जीवन के ऐसे ऐसे रहस्य खोलते हैं कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है अगर, तो भी मैं चाहती हूँ कि वो एनरोल कर ले इस अष्टांग चिकित्सा, क्योंकि इसको करने के बाद और कुछ नहीं तो वो एक अपना बेटर वर्जन बन के तैयार होगा इस इस थेरेपी को करने के बाद। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप जरूर करें, आगे बढ़ें और इस कुंभक थेरेपी का लाभ उठाएं। कुंभक सत्य है और ये आपके हर प्रश्न का उत्तर है कुंभक। मेरे तरफ से बस यही कहना था। ओके, थैंक यू रीना मैम, थैंक यू सो मच कि Thank you. आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी Thank मच। you. Neha, do we have another participant? Okay. Rachna ji, please unmute yourself. Bharti Giswani ma'am है, तो I'll just invite her. I'll just put her on spotlight. Bharti Giswani ma'am, please unmute कर लीजिए. Let me put you on spotlight. Welcome ma'am. Welcome. Thank you. Please अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सभी के साथ। मेरा नाम भारती गिदवानी है और मेरा लास्ट ईयर यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस रिमूवल का। तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि क्या करें क्या ना करें। ऑपरेशन हो चुका था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को वापस से रिवाइव करें, और बहुत स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं थी। घर के काम कभी हो पाते थे कभी नहीं हो पाते थे। तो मैंने इस साल देखा फेसबुक पर अष्टांग चिकित्सा के बारे में, तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए, क्योंकि जो ये वर्ड कुंभक है ना, मुझे कुंभक के बारे में ये पता था कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब ब्रीदिंग से कुछ होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना डीप है ये सब कुछ। बहुत मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी, पर वर्ड सुन रखा था, तो मैंने वर्ड के चक्कर में सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या है। मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी, पेन भी नहीं होगा, ये सब पढ़ उसमें था फेसबुक में। तो मुझे लगा कि इंटरेस्ट हुआ कि देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने करना शुरू किया जैसे जैसे बताया। 10 डेज केवल किया था मैंने, बहुत ज्यादा अभी टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 10 डेज हुआ था।
तो 10 डेज के बाद जो मुझे मेरी बॉडी में फर्क लगा, वो सबसे पहले मेरा हील पेन गया, मैं पैर नहीं रख पा रही थी फर्श पे, और मेरा बॉडी पेन चला गया। और उसके बाद जो एक ब्लोटिंग वाली फीलिंग आती थी, मैं सारा दिन ना कुछ मतलब खाने के बाद मुझे डर लगता था कहीं मेरे को ब्लोटिंग नहीं होने लगे, और बहुत बॉडी में हैवीनेस लगती थी। लेकिन इसके बाद मुझे पूरा दिन बहुत अच्छा फ्रेश लगता है, मेरी बॉडी पूरी लाइट लगती है, और मैं इतना आराम से घर के सारे काम होते हैं, और मतलब मजा आता है। और आप सबको मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप लोग ये अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करने से पहले खुद से प्यार करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आपको फीस की चिंता होगी, ना ये लगेगा कि इसमें टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा तो जब बॉडी इतनी टाइम से आपकी खराब चल रही है, तो उसको सुधारने में आपको एकदम से कुछ नहीं होगा। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो इससे पहले आप खुद से प्यार करिए, तो और उसके बाद ये अष्टांग चिकित्सा जरूर ज्वाइन करिए। और एक चीज और है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि एंटी एजिंग हम लोगों ने बड़े वर्ड सुने हुए होते हैं, लेकिन एंटी एजिंग का मतलब हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि क्रीम्स होती हैं, एंटी एजिंग क्रीम लगा ली हो गया, नहीं। एंटी एजिंग का एक्चुअल मतलब अगर आपको समझना है, तो आप ये अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है। बस मेरे लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। Thank you, ma'am, so much. Thank you. Rachna ji, I unmuted you. Thank you so much, Anil ji. There was some issue, I don't know. So now we will be sharing the program details. Okay, just give me a few seconds. Yeah. So in the meanwhile, the participants can please write down their questions. Soon after the program details, Swamiji will be joining us and I'll be taking up the questions. So I think a couple of people have already written. The rest can please write down their name, number, and whatever problem you're suffering from. Okay, Rachna ji, screen दिखाई दे रही है आपको? हाँ. Okay. Okay. So let us know about the details of the program, which a lot of you are waiting for. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम डिटेल्स का. जल्दी से जान लेते हैं ताकि हम स्वामी जी के आने से पहले कंप्लीट कर सकें. सबसे पहले, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो स्वामी जी द्वारा ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स आपके साथ आपको गाइड करेंगे ऑनलाइन, यानी कि जूम के क्लासेस के थ्रू. ये पहली चीज है. जैसा कि आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, स्वामी जी ने बताया है वीडियो में, 3 मॉड्यूल्स हैं पूरे प्रोग्राम में. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम. मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, or we can call it Vata, Pitta and Kapha. These 3 modules constitute the whole program. Each module duration is 21 days और total duration is 63 days. पूरा जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, वो अवधि जो है वो 63 दिन की है. 63 days is the total duration. Program overview, this is 9+1 or 10 weeks. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. एक एक्स्ट्रा वीक क्यों है, ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे. 2 लाइव क्लासेस होंगी हर हफ्ते. There will be 2 live classes every week. One will be the learning or the main class, and one will be the mentoring or the practice class. Next steps क्या है, आगे आप क्या करना है आपने? You pay the program fee. आप program fee pay करें. And we have a special webinar special pricing for people who have stayed back. And after that, you fill the participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you. And then you start your classes with module 1.
then after module 2, after completing module 1, module 2 and module 3, इस तरीके से पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट किए जाएंगे। टोटल क्लासेस अगेन मॉड्यूल 1 में 6 क्लासेस हैं, 3 मेन क्लासेस और 3 प्रैक्टिस क्लासेस, सो 21 डेज का है। एंड अगेन सेम इज फॉर मॉड्यूल 2, 6 क्लासेस इन ईच मॉड्यूल, सो 18 क्लासेस. You must be seeing one customization class. What is this customization? We'll get to know after some time. So total जो engagement रहेगा आपके साथ वो 10 हफ्ते का रहेगा. 10 weeks will be the total engagement. Batch 107 starts on 28th November, Monday at 6 PM. जो नया बैच स्टार्ट होगा हमारा शुरू होगा वो 28 नवंबर से है, मंडे 6 PM. मेंटर क्लासेस जैसा कि मेन क्लास स्टार्ट होगी आपकी मंडे को, तो उसकी जो मेंटर या प्रैक्टिस क्लास होगी वो होगी थर्सडे को। और मॉड्यूल 2 जब शुरू होगा तो आपकी मेंटर क्लास हो जाएगी फ्राइडे को, और मॉड्यूल 3 में सैटरडेज को हो जाएंगे आपकी क्लास। ये सभी डिटेल शेयर किए जाएंगे। We'll share all these details on WhatsApp as well as in chat here on Zoom, so need not worry. Class experience. What is the class experience like? जैसा कि आप समझ चुके होंगे ये लाइव सेशंस होंगे. These will be live sessions conducted over the Zoom app. Mentor watch all the participants. तो इसी वजह से आपको प्रैक्टिस क्लास में कैमरास ऑन रखने होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे कि काफी लोगों के ये सवाल होगा कि ये क्लासेस क्या ये सच में पॉसिबल है कि ये थेरेपी ऑनलाइन कराई जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, और जल्द ही हम शेयर करेंगे थोड़ी और डिटेल्स आपके साथ। रिटन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और सेशन रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं, ताकि आपकी अगर कोई क्लास मिस होती भी है तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। There will be a lot of extra things that will be done in the program, like mental practices will be there. There'll be unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan, and many people ask us if there are any dietary restrictions. कोई diet की restrictions है क्या इस program में? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक वीडियो मिलता है आपको जिसपे स्वामी जी बताते हैं कि इस तरीके से अपने खाने को इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। देन सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस आपको मिलते हैं और काफी नॉलेज शेयर की जाती है आपके साथ में। इससे पहले कि हम जाने कि प्रोग्राम की फीस क्या है, एक थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि ईयरली एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे होंगे। व्हाट कुड बी द ईयरली एक्सपेंसेस दैट वी ऑलरेडी मे बी डूइंग जस्ट टू मैनेज आवर डिजीज। जो हम डिजीज में है, जो प्रॉब्लम में है, उसको मैनेज करने के लिए शायद कुछ ऐसे हम ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे होंगे, और मैं बताऊंगा ये क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। डॉक्टर फी अगर हम पूरे साल भर के लगाते हैं तो 6,000 to 12,000 could be the doctor's fee for the complete year, various visits to the doctors. Physiotherapy, if you are into physiotherapy, 12,000 to 30,000 could be already spent on physiotherapy. Medicines another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year you could already be spending just to manage the disease, not cure it, mind you. And we all know the side effects of allopathy, so we will not talk about it so much here. Why I'm sharing this is because when we buy something, be it a product, anything, or a therapy, or we invest into therapy, we always look for comparisons. हम compare करते हैं कि यहाँ पे इतनी थेरेपी है, इसका ये प्राइस है। तो जब हम इस आपको प्राइस अभी थोड़ी देर में अनाउंस करने वाले हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके मुकाबले आप कितना कम पे कर रहे हैं ताकि ये सभी लोग अफोर्ड कर पाए। ओके, और इससे पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर। दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वांट रिजल्ट्स टुमारो ओनली। ये पॉइंट का मतलब ये है कि हमारी जैसे आदत बन चुकी है, कोई भी एक स्पेशली एलोपैथिक दवाई लेने की, सर्दी होती है, खांसी होती है, हम तुरंत एक दवाई ले लेते हैं, हम टैबलेट ले लेते हैं, कुछ भी सिरप ही लेते हैं। तो ये आदत बन चुकी है। तो जब भी कोई दिक्कत आती है और बड़ी दिक्कतें आती हैं तो वो हमें हमेशा उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है बट नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो ये ऐसा कुछ नहीं है ये प्रोग्राम। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई दवाई होगी तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप उम्मीद करते हैं कल ही आराम आ जाए, जबकि कुछ लोगों को आ जाता है बट वो बहुत रेयरली होता है,
तो इसमें आपको टाइम लगने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं है बट फिर भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में नहीं आई है तो एक दिन में जाएगी भी. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन द बॉडी. अपने शरीर के ऊपर काम करके, बार बार हम कह रहे हैं, रचना जी ने स्टार्टिंग में भी ये कहा है कि आप अपने ऊपर तैयार हैं अगर काम करने के लिए तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, वरना नहीं. And this is not for those who cannot invest 80 to 90 minutes every day on themselves. इसमें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो अपने ऊपर टाइम आपको लगाना पड़ेगा. And initially it will take 80 to 90 minutes. As you get used to the kriyas, then it may take 30 to 40 minutes also. But आप इसके लिए मेंटली तैयार रहें कि 80 to 90 minutes आपने अपने शरीर के ऊपर काम करना है. And this is not for those who are impatient. Again, when we are in pain, when we are in a problem, physical ailment होती है जब, तो patience कम हो जाता है. But still हमारी तरफ से एक clearly है कि please be patient, right? And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. इसको थोड़ा मैं elaborate करना चाहूँगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए जब आप हमसे बात करें. ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं है, जो वेबिनार है वो फ्री है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है कि अष्टांग चिकित्सा है क्या. क्योंकि दुनिया के लिए अष्टांग चिकित्सा एक नई चिकित्सा, नई वैसे तो नई नहीं है क्योंकि हमारे पुराने इसमें आयुर्वेद का पार्ट रही है या हमारे वेदों में इसका जिक्र है, बट दुनिया के लिए फिर भी नहीं है क्योंकि स्वामी जी इसको रिवाइव कर रहे हैं फिर से. तो वेबिनार फ्री है जो आप अटेंड कर रहे हैं, बट जो पूरा ट्रीटमेंट होगा, तो 9 हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा, तो पूरा क्लासेस होंगी, वो फ्री नहीं है. और ये टिप्स के लिए अगर आपने ज्वाइन किया है तो भी ये वेबिनार या ट्रीटमेंट वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम. बट जो थेरेपी है, टिप से काम नहीं चलती है किसी भी थेरेपी, बिकॉज आप एक वेबिनार देखेंगे, एक एक्सपर्ट्स कुछ बताएंगे, फिर दूसरे एक्सपर्ट्स कुछ और बताएंगे, तो टिप्स लेंगे तो कंप्लीटली ऑपोजिट भी हो सकती है, तो उससे कुछ फायदा मिलता नहीं है लॉन्ग रन में. सो दिस आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर, राइट. नाउ अब हम देखते हैं इसमें मिलता क्या है. प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दिस. पॉइंट नंबर 1 is प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. This alone could be worth the whole cost of the program. Why? Because most of the treatment that we see today do not find or do not know how to find the root cause. जड़ क्या है प्रॉब्लम की वो नहीं पता लगा पाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं. तो ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस होता क्या है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलता है ऑनलाइन में. दिस इज कंडक्टेड ऑनलाइन. अब आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन में कैसे होता है डायग्नोसिस, अभी मैं बताता हूँ. आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाता है आपकी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर. यू आर आस्क्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर ब्रेथ एंड ऑन योर इमोशंस एंड यू टू रिकॉर्ड दोज इन द फॉर्म. सेकंड थिंग दैट यू टू डू इज you to write about your problem in detail, and the third thing that is to be done is you to upload a selfie photograph without specs and in case of ladies without makeup also. So when these three things go to Swamiji, he is able to determine the root cause. Iski jad kya hai? Okay, so that is the most important point. Then weekly one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? Actual classes of 60 minutes and then we take up questions. आपके questions लिए जाते हैं क्लास के बाद, तो इसलिए थोड़ा उसमें 20-30 मिनट उसमें लग सकते हैं. तो टोटल ड्यूरेशन बन जाता है लगभग 90 मिनट का. And then same goes for practice class also. Practice class में आपको कैमरास ऑन रखने होते हैं ताकि हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड कर पाए, आपको क्लियरली देख पाए whether you are doing it correctly or not. And then online course access for 6 months. 9 हफ्ते के बाद जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो भी आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स 6 महीने तक रहती है, which is enough time to learn all kriyas by heart. आराम से वो 6 महीने में आप याद कर सकते हैं. अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-3 महीने में इजीली आपको याद हो जाती है. वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास. अब ये क्लास रिकॉर्डिंग से अलग कैसे है? हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास रिकॉर्डिंग. In the class recording is the whole duration, whatever the duration is, 60 to 90 minutes. But these videos are videos of each kriya. Some kriya may take 2 minutes, some kriya may take 10-20 minutes. So you don't have to watch the whole class to see how a kriya, how you to do the kriya. You have to just watch that video and that's it. Then you get written instructions in Hindi and English.
दोनों भाषाओं में आपको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं जो लिखित होती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर डेली उससे फॉलो कर सकते हैं. Then private WhatsApp group to ask doubts and questions. This will be your home for the next 9 weeks. जैसे आपको आप 2 दिन तो आप हमारे साथ लाइव रहेंगे, 2 days of the week you will be live with us. The remaining 5 days when you are practicing alone on your own, and if you have any doubt that time, so you can ask your question or your doubt in this WhatsApp group. Our mentors are added in these groups and they'll be answering you, they'll be guiding you step by step. So you need not worry. This is a support system. And then individual participant progress tracking or feedback. Every day you'll get a form to fill up so that we can track if you're making progress or not. If you're not making progress, then we try to find out the reason. So that is done. Now, therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. And this is linked to the first point, the Pran Shakti diagnosis. If you've been thinking that if in the whole batch, in the whole class, if different people have different problems, how are the classes same? Okay. अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो शायद आप सोचें. थेरेपी कस्टमाइजेशन में क्या होता है, जो प्राण शक्ति डायग्नोसिस, आपके डायग्नोसिस के बेसिस पर आपकी थेरेपी को फाइन ट्यून किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा, सभी के लिए वो अलग अलग होगा और ये 10th वीक में होगा. अब एक और सवाल उठता है, 10th वीक में कस्टमाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि शरीर को पहले तैयार किया जाता है इस कस्टमाइजेशन को रिसीव करने के लिए. 3 मेन चीजें होती हैं. देयर आर 3 मेन थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दिस 9 वीक्स. फर्स्ट, द वात पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस. जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि अपने वीडियो में बताया कि 3 बेसिक डिसअलाइनमेंट्स होती हैं बॉडी की, थाइस, नेवल एंड चेस्ट, वो ठीक किया जाता है. और तीसरी जो मेन चीज है, आपको कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन सिखाया जाता है. यू आर टॉट कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन, एंड दिस इज द रीजन if you are into Kapalbhati, if you're doing Kapalbhati on a daily basis, you are advised not to do it for the next 5 to 6 months. So जब पूरे बॉडी तैयार है कस्टमाइज्ड क्रियाज को रिसीव करने के लिए, तो आपका वो 10वें हफ्ते में होता है. दिस इज द रीजन. Okay. And then extended support for 30 days after the program is over. प्रोग्राम 9 हफ्ते के बाद जब खत्म हो जाता है तो भी आपको 30 डेज का और एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलता है. बिकॉज कई बार होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, ज्यादा बीमार हो जाते हैं या कोई भी रीजन हो जाता है, तो भी वो हम समझते हैं और इसीलिए एक्स्ट्रा 30 डेज का भी आप कंप्लीट सपोर्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन सब कुछ आंसर कर सकते हैं. इनफैक्ट 30 डेज के बाद भी हमारा सपोर्ट कंटिन्यू रहता है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहें तो. ओके, सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय presentation. Now we'll just talk about the fee. Program fee is 14,500 and this includes all the points I talked about: support, classes, everything, Pran Shakti diagnosis, therapy customization, all included in this. But as I promised you, there's a special webinar pricing for people who have stayed back. वो क्या है जान लेते हैं. Just 6,500 for the complete program. Everything included in this: 30 days of extra support, therapy customization, Pran Shakti diagnosis, 18 plus 190 classes, WhatsApp group support, everything is included in this program. So this is made so affordable that anyone can start taking benefit from this. Now, how to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group. After that, you fill the participant onboarding form. Then you join the class WhatsApp group, which I just talked about. And then you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. That's it. Payment details already अभी हम share करेंगे. और अभी थोड़ा मैं रुककर यहाँ बात करना चाहूँगा एक सुपर टीम के बारे में. The super team which will be at your service. Why super team? Because हमारे जो participants हैं वो बताते हैं कि जो हम उन्हें support मिलता है वो इस तरीके से मिलता है कि कोई एक सुपर टीम को सुपर नेचुरल पावर है इनके पास. क्यों है वो आप समझ जाएंगे जब आप प्रोग्राम में आएंगे. Rachna Shirwal Bothra, program director, and she is the host of today's webinar. Shalini Bhagwat, she is the class manager, batch shifting, batch, class timings. She is the person who manages all this. Then we have Ashwini Kumar, is the manager of IT. Mentors जो हैं हमारे हैं पूजा चोपड़ा, रंजना स्वेन, सुकेश राज, R.D. गुप्ता जी, सोनी छाबरिया, अरुणा नारायण, मीना राय, सुरुचि गोयल. We have a lot of mentors. So इसका मतलब ये हुआ कि सभी participants को, although it's a online program, सभी participants को complete support मिलता है.
इसीलिए मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि ऑल्दो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, फिर भी जो सपोर्ट है, दिस इज लाइक नो अदर प्रोग्राम, दैट इज गारंटीड। नेहा उपाध्याय है, वो एनरोलमेंट इंचार्ज है, शी विल बी द पर्सन विल बी टॉकिंग टू बिफोर starting your classes. Anil Chauhan, that's me. I'll be answering most of your questions in the WhatsApp group, because ऐसा हो सकता है कि स्वामी जी सभी क्वेश्चन ना ले पाए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आपके अगर क्वेश्चन नहीं लिया जाता है स्वामी जी के साथ तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। हिमांशु रेड्डी वो टेक्निकल हैं हमारी टीम के। अब जो वीडियो अपलोड्स हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस अपलोड्स हैं, ऐप में एक्सेस कैसे लेना है, हिमांशु आपको हेल्प करने वाले हैं। देन अनीता जी हैं जो आपको 1-on-1 बात करेंगी। आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, बट अनीता जी का आपको नंबर दिया जाएगा, अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है तो आप उनको डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो टोटल जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कंप्लीट टीम है ताकि सभी सब पार्टिसिपेंट्स को हम प्रॉपरली सपोर्ट कर पाए। With this, I come to the end of my part. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now, for the much awaited part of the webinar, the questions will be answered by Swamiji himself. He has joined us, so we will not waste much time. I will just put him on spotlight and okay, there we are. Thank you so much. Good evening, Swamiji. Namaste. We'll just take up the questions one by one. Okay. Shushma ma'am says, I have foot, thumb and knee pain. I am 61 years old. So foot, thumb and knee pain. So बुढ़ापा कहाँ से शुरू होता है? Where does the old age start from? It starts from your feet. आपके पाँव से शुरू होता है बुढ़ापा। Now what does it mean? Old age means what? Old age means weak metabolism. आपके शरीर की कार्य प्रणाली जो है वो कमजोर पड़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक से काम अब स्लो हो रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे। तो ठीक से काम नहीं कर रहे, वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर आप अपने ऑर्गन्स को देखिए तो बिकॉज यू आर बॉम्बार्डिंग इट विथ केमिकल्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बचपन से अगर आप अपने शरीर को केमिकल से बॉम्बार्ड करेंगे तो they'll start giving up, isn't it? So for you it has given up at a certain point of time in your life. आपके जीवन में ये एक समय पे आया, शायद ये 50 में आया, शायद ये 45 में आया। अब जो आपके बच्चे होंगे ना वो 35 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, अगर यही काम हम करते रहे। So bombarding a human body with chemicals is not a right thing. We will not just get health, we will actually destroy the whole humanity. So metabolism weak क्यों है? अभी देखिए, आप देखेंगे शुगर सब कितने लोगों को बढ़ रहा है ना, ब्लड प्रेशर कितने लोगों को बढ़ रहा है, थायराइड कितने लोगों को बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस देखिए लेडीज में बहुत कॉमन हो गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, आपके जवान लोग जो हैं वो हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं 35 साल 30 साल। So why these are happening? 80% of the problem cannot be handled by any medicine, allopathic medicine, because they have created it. उसी की वजह से ये प्रॉब्लम। तो 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, हार्ट डिजीज था, कैंसर था, थायराइड था? 100 साल पहले कितने लोगों को था? किसी को भी नहीं था। So by bombarding the body with chemicals, we have created this situation. अब आपका लिवर वीक हो गया है तो फिर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आपके शरीर का कामकाज ठीक नहीं होगा, नई चीजें नहीं बनेंगी। और आफ्टर 45 और सो, आफ्टर 50, यू कैन टेक इट आफ्टर 50, आपके कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। So if there is a weakness in the body, where will it impact? अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी है तो कहाँ असर करेगी? सबसे वीक एस्पेक्ट पर असर करेगी, तो वो नीचे असर करेगी।
अभी क्या है, आपको दो चीज बताऊं। अगर रेडिशनेस है आपके जॉइंट्स में, तो जो दर्द है ना वो इन्फ्लेमेशन के कारण है, ज्वलनशीलता आपको महसूस हो रही है, यानी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, टॉक्सिन ज्यादा है। तो अगर आप ठंडा करेंगे थोड़ा उस जगह को तो उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन अगर वो जगह काली पड़ गई है, सूख गया है, अगर वो जगह सूख गया है तो उसको थोड़ा गर्म करेंगे ना तो आपको आराम मिल जाएगा। मगर रीजेनरेशन कैसे करेंगे, वो तो जरूरी है ठीक करने के लिए। तो कौन सी दवाई रीजेनरेट करती है? कोई भी दवाई नहीं है ऐसी। हर एक दवाई डीजेनरेट करती, आप कोई भी दवाई खा लो। तो रीजेनरेशन के लिए आपके शरीर पे काम करना पड़ेगा। तो आपके शरीर का एक रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ होता है। वो रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ को मैं आपको थोड़ा बताता हूं, है ना। आप समझ लीजिए चीजों को, ताकि आपको डिसीजन लेने में, आपको डिसाइड करने में, सोचने में, समझने में कि क्या करना चाहिए, आपको मदद मिले। तो जहां पे भी पोल्यूशन ज्यादा है, सपोज कीजिए एक गाड़ी है, डीजल का ट्रक है, एंड इट इज एमिटिंग लॉट ऑफ स्मोक, जो जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा कर रहा है। आप वहां से गुजरते हैं तो आप सांस ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं? आपकी सांस, आप सांस बंद कर लेते हैं ना, नाक पे हाथ डाल लेते हैं, सांस रोक लेते हैं। इवन इफ इट इज पोल्यूटेड एरिया, यू इनहेल लेस। आपका शरीर नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे सांस कम लेता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये पूरे के पूरे वायुमंडल का, पूरा का एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो गया ना, तो नेचुरली आप सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं? यू आर इनहेलिंग लेस, योर कैपेसिटी टू इनहेल हैज बिकम लेस। आपका इनहेलिंग कुंभक कम हो, कैपेसिटी का मतलब कुंभक होता है। इनहेलेशन का कुंभक हो गया, एक्सहेलेशन का कुंभक हो गया, तो आपका इनहेलेशन का कुंभक कम हो गया। इनहेलेशन का कुंभक अगर कम हो गया तो क्या एक्सहेलेशन का कुंभक बढ़ गया? क्या क्या एक्सहेलेशन आपकी बढ़ गई है? नहीं, एक्सहेलेशन भी कम हो गया। क्या कमाल की बात है। कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कितने लोगों के बॉडी में टॉक्सिन्स है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। टॉक्सिन शरीर में इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका शरीर टॉक्सिन निकाल भी नहीं पा रहा। तो क्या प्रॉब्लम कहां पे आ गई? रीजेनरेशन, डीजेनरेशन, ये दोनों के बीच में इंबैलेंस आ गया। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। अभी आप देखेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में सभी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि जिसे आप ट्रीटमेंट समझते हैं ना, वो टॉर्चर है। आप सोचते हैं दवाई खा के आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं, दवाई खा के तो आप टॉर्चर करते हैं। आप एक केमिकल डालते जैसे अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं। तो वो टॉर्चर कब तक सहेगा आपका शरीर? कहीं कभी तो गिव अप कर देगा। तो रीजेनरेशन, डीजेनरेशन का स्ट्रेंथ कम हो गया। इसी को हम प्रकृति शरीर और विकृति शरीर बोलते हैं। यही अष्टांग चिकित्सा में हमने आपको बताया। तो रीजेनरेशन को कौन बढ़ाएगा? आपका शरीर ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास ही रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ है, और तो किसी के पास नहीं है। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? रीजेनरेट करने की तरफ जाना। कितना हो जाएगा रीजेनरेट, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उसके ऊपर ये भी कि आप कितने कमिटेड हैं। इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स इट, यू विल बी एबल टू रीजेनरेट फास्टर। इफ नॉट, इट विल टेक टाइम। किसी ने पूछा ब्रेन सेल रीजेनरेट होते हैं? हाँ जी, सब कुछ रीजेनरेट होता, सब कुछ रीजेनरेट होता। रीजेनरेट अगर नहीं होता तो आप जिंदा नहीं रह सकते। एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स डाइज, एंड एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स आर बॉर्न। तो क्या रीजेनरेशन हो सकता है ब्रेन सेल्स का? होता ही है। क्या कार्टिलेज का रीजेनरेशन होता है? हो सकता है, होता ही है। आप समझ लीजिए, लाइफ का मतलब ही कॉन्टिन्यूस रीजेनरेशन, डीजेनरेशन। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई रीजेनरेशन की, तो ज्यादा डीजेनरेशन हो जाता है। ऐसे मान लीजिए, क्या वो वापस रीजेनरेट होता? नहीं, आपके जिससे आइडिया है ना दिमाग में, वैसे नहीं होता। आप सोचते हैं गोली खाते हैं और वो दर्द कम हो जाता है। दिस इज योर आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट। नो, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। उस तरीके से नहीं होता। इट विल टेक टाइम, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एज ग्रुप। जो जवान है उसके लिए तो रीजनरेशन बहुत जल्दी होता,
जो उम्र दराज है उनके लिए रीजनरेशन होता है, पर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मगर थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको रीजनरेशन की तरफ में नहीं जाना चाहिए? शायद जितना भी कर पाए वही ट्रीटमेंट है, आपको आराम मिल जाएगा, योर लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म, इट विल बिकम इजी। तो ये जिम्मेदारी तो आपको उठानी ही चाहिए, चाहे कितने भी टाइम में रीजनरेशन क्यों ना हो। बट आपके बॉडी में रीजनरेशन एंड डीजनरेशन कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, उसी को आप देखते हैं एज अ लाइफ कॉन्टिन्यूटी, कि ये चल रहा है। तो हर जगह रीजनरेशन डीजनरेशन, अगर इसका इसका रेट ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन अगर आप कंट्रोल करते हैं तो डीजनरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is from Mana Mohan sir. I have gastrointestine, sugar and knee problem. हाँ, देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ? जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। आपको मालूम है हमारे पूर्वज कहा करते थे सभी रोग जो है पेट से शुरुआत होती है उसकी। हाँ, दिस इज ट्रू। इफ यू टेक योर बॉडी एंड माइंड एज अ फिजिकल एंटिटी, एक फिजिकल एंटिटी है, तो आपकी सारी जड़ जो है पेट से शुरू होती है। सो पेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इट इज मेटाबॉलिज्म, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है, 6 levels of metabolism happen, and there are 6 different kinds of tissues which get formed in your body. रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 6 चीजें पैदा होती हैं। और आपको ये 6 मेटाबॉलिज्म लेवल, मेटाबॉलिक लेवल चाहिए। क्या क्या? देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अब आप बोलेंगे ये क्या है? तो आपको तो ट्रेनिंग मिली नहीं है इस चीज में। तो बट दिस इज साइंस, है ना, दिस इज साइंस ऑफ लाइफ। जीवन का ये विज्ञान है। अभी जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं दैट इज नॉट साइंस। अभी जिसे हम सो कॉल्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं, इट इज अगेंस्ट साइंस, साइंस के विरुद्ध है। उसमें साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन नामकरण साइंस का रखते हैं वो, है ना। जैसे आपने अपना नाम रख लिया बहुत अच्छा सुंदर सा सत्यवादी, और झूठ बोलते हैं रोज, तो वैसा ही एलोपैथी है। उसने नाम रखा हुआ है साइंस, और वो रोज इंसान को बिगाड़ने में लगे हुए। तो अगर बल कमजोर हो जाएंगे आपके शरीर के तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। कोई भी दवाई बताइए जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं जी आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ 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 बोल देते हैं आपको। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट, आप पूछो ट्रीटमेंट क्या है, तो घुमाते फिराते रहते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मालूम है आपको। अरे भाई इतनी सारी बीमारियां बता दी, ट्रीटमेंट एक का भी नहीं है। डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं, किसी चीज का भी ट्रीटमेंट नहीं, नामकरण रखा हुआ है केवल। तो इसीलिए आपको थोड़ी अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा। आप लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इंडियंस बुद्धिमान होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ और पढ़ा लिखा दिया गया। सो ये आपका शरीर कोई भी काम जो है ना, इसके कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ फोर्सेस ये इस्तेमाल करता है ना, कुछ बल इस्तेमाल करता है। तो बल कमजोर कैसे होंगे? जब इसके साथ में आप छेड़छाड़ी करेंगे। यानी कि डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डालते ना, और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, मगर इस शरीर में कुछ भी डालते हो। देखिए आपकी ये दर्द की दवाइयां, बुखार की दवाइयां, एंटीबायोटिक, ये पेड़ पे लगे होने चाहिए थे ना। अगर यही आपकी दवाइयां होती तो तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं इनको। तो आपका शरीर इन दवाइयों के लिए नहीं बना हुआ। तो ये दवाइयां जैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दवाइयां हमेशा एक ही चीज पे काम करती है। क्या काम करती है? किसी चीज को ब्लॉक करके, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको। तो अगर किसी को किसी चीज को अपाहिज करके कोई काम करे तो अच्छा काम तो नहीं होगा वो। यानी आपके शरीर को थोड़ा अपाहिज कर दिया, वहां रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, अब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, और अपने जो चाहते हैं वो रिजल्ट लेके आ गए। मगर भाई देखो, ये तो अच्छा काम नहीं, ये तो नुकसान हो जाएगा हमारे शरीर को। तो इससे हमारे शरीर के बल कमजोर हो गए। तो अब आपके बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे है? आपके ऑर्गन्स वीक हो गए, आपका हार्ट वीक हो गया। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा।
कुछ भी खाओगे वो ठीक से आपके बॉडी में जाएगा नहीं, वो टिश्यू हमेशा डेफिशिएंसी बनी रहेगी। आपके पूर्वजों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था मगर उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। आप आज पता नहीं क्या क्या खाते हैं मगर सारी डेफिशिएंसी यही है आज ही है। तो मेटाबॉलिज्म वीक है, एब्जॉर्प्शन वीक है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को बिगाड़ दिया है ना, डिटॉक्स एस्पेक्ट को बिगाड़ दिया। अगर इतनी सारी चीजें हम करें, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए हमारा, यानी कि आपके शरीर में कोई भी चीज अब ठीक से फ्लो नहीं हो। आप फूड खाएंगे उसके बाद उसको न्यूट्रिशन बनना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाना चाहिए, रीजनरेशन करना चाहिए बॉडी का, ये सारा फ्लो बिगड़ गया। इसीलिए इंक्रीज्ड एपिसोड्स ऑफ डिजीज, इसीलिए बीमारियां एकदम से एपिडेमिक लेवल पे बढ़ रही। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी कहां से शुरू हुई, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, पेट से शुरू। लेकिन इस पेट से प्रॉब्लम शुरू करने के लिए क्या किया गया, आपको बचपन से दवाई खिलाई गई। तो आपका गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं है, यानी आपके शरीर में जो कीटाणु होने चाहिए ना, जो पाचन में मदद करते हैं, वो कीटाणु केमिकल से मर जाते हैं, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। दूसरी बात, लिवर पे असर आता है। ये जितने भी आप बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब खाते हो ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है ये जो गोलियां खाते हो। ये आपके लिवर में जाके फूटता है इसको, ये ठीक है ना, वो जोर डालता है, तो लिवर बेचारा इन्फ्लेमेशन में आ जाता है, यानी उसके अंदर ज्वलनशीलता पैदा हो जाती है। आप अगर हाथ को खरोचेंगे तो जलन हो जाएगा, फिर थोड़ा घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा। अब बेचारा लीवर कैसे क्या करे, तो वो फैट क्रिएट करता है, ऐसे कहते हैं फैटी लीवर। तो आपको एक दवाई दे दी जाती है कि वो फैट जो है उसको भी खत्म करो, यानी वो बेचारा बचा रहा है अपने आप को, आप उसको बचाने भी ना दें। कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल बढ़ाएगा फिर आपका शरीर, क्योंकि आपके शरीर में अगर जठराग्नि ठीक नहीं है, कोई कामकाज ठीक से नहीं हो, तो रिस्की सिचुएशन हो गया ना। तो आपको बचाया कैसे जाए, तो कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल और ट्राइग्लिसराइड से कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल क्या है, आपके बचाने का हार्मोन है, ठीक है ना, और स्टीरॉयड है। तो वो आपको क्या दिया जाएगा, स्टैटिन दे दिया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करो, ट्राइग्लिसराइड कम करो, यानी आपके शरीर को बचाने की इजाजत नहीं है अपने आप को। दस्त करेगा तो दस्त रोक देंगे, उल्टी करेगा उल्टी रोक देंगे, फीवर करके कोरोना के वायरस को मारेगा, फीवर रोक देंगे, यानी आपने तो अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया। ये आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए, इनकी ये सबसे कम बुद्धि वाले लोग हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। गोरे जो है ना, फिरंगी, वेस्ट का सिविलाइजेशन है, सबसे मूर्ख सभ्यता है। आप उन्हीं के चक्कर, उन्हीं को अपना मालिक मानने लगे, तो आप तो बर्बाद होंगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे, जेनेटिक डिविएशन इतना बढ़ जाएगा, सारे डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। तो अभी क्या करना है, क्या करना है, जठराग्नि बढ़ानी पड़ेगी, गारे पत्ते अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, आपको कैसे बढ़ानी पड़ेगी, आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक जवान इंसान को छू के देखे, टच अ यंग पर्सन एंड टच एन ओल्ड पर्सन, एक बूढ़े इंसान को छू के देखे, दोनों में क्या फर्क नजर आएगा, व्हाट विल द डिफरेंस क्या होगा। एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता। तो व्हाट हैज बीन लॉस्ट थ्रू द एजेस, उम्र के साथ क्या घट गई, जठराग्नि घट गई, मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। अब एक काम करें, सांस रोके थोड़ी थोड़ी देर, जितना आप आराम से रोक सकते हैं, डू इट फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट कर लीजिए काम, you'll see your body will become hot, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। तो जैसे कुंभक हम करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं, ये इसको, इस अम्ब्रेला को गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अग्निज इन योर बॉडी, इट इज नॉट फायर बट बेसिकली अ फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 12 तरीके की अग्नियां होती है, इस अम्ब्रेला को हम कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। तो कुंभक का सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है, गार्हपत्य अग्नि बढ़ जाती है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, भूख आपको जो नहीं लग रही थी भूख लगने लग जाएगी, हंगर, गुड हंगर क्वोशंट विल इंक्रीज, डाइजेशन इंप्रूव होगा, एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। ई फ्लक्स, आपके बॉडी जो है बाहर टॉक्सिन्स
फेंकने लगेगा, your strength of detox will increase, right? And thereby strength of regeneration and degeneration both will get into balance. आपका autoimmune disorder ठीक हो जाएगा. And then you'll see कि joint issues क्यों हो रहा है. जॉइंट इश्यूज होने के 2-3 रीजन है. पहला मेटाबॉलिक वीकनेस, इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट में. देखो आपको दर्द जो होता है ना वो जलनशीलता, जलन से होता. अंदर से अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द होगा, नहीं होगा तो हड्डियां 100 टुकड़े हों, दर्द नहीं होगा. आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं कभी स्पोर्ट्स पर्सन था. मेरी पांव की सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हुए हैं. इट नेवर पेन्स, उनको दर्द नहीं होता. तो ये जो कहानी है ना, हड्डी बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आप भूल जाइए. Unless and until there is an inflammation, there cannot be a pain. Then the second thing is, if there is a neuro degeneration, then there will be a different kind of a neuro pain. है ना, समझने में नहीं आएगा. ड्रॉप फुट जैसे कई लोगों का है, हमारे पास में ड्रॉप फुट के केसेस आते हैं. there is a lady who was a marathon runner, वो मैराथन दौड़ती और उसको ड्रॉप फुट हो गया. डॉक्टर ने कहा आप तो कभी नहीं दौड़ पाओगे. शी केम टू मी, उन्होंने बोला कि भाई स्वामी जी एक बात बताओ, मैं दौड़ पाऊंगी. मैंने कहा कि 100%, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा. चलेगा, थोड़ा टाइम. सो आई टोल्ड 1 साल दे दो, दौड़ जाएंगे. मगर वो 6 महीने के बाद दौड़ने लगे. So why? Unless and until you increase the neuro regeneration, there won't be a relief. आखिरकार आपको स्टेरॉइड देके एक गाजर मूली की तरह रखा जाएगा. दैट लाइफ इज नॉट लाइफ. ठीक है ना, स्टेरॉइड देके आपको नंब कर दिया जाता है और कहते हैं कि देखो जी हमने तो ये ठीक कर दिया. ठीक कुछ भी नहीं किया. सो स्टार्टेड फ्रॉम गारे पत्र अग्नि, इसको अगर करेंगे तो ठीक है. Okay, the next question is from Pinakin. Motor neuron disease, amyotrophic lateral sclerosis. Okay, I'll just unmute. Yeah, you can unmute yourself. मोटर Should I repeat the question? नहीं, मोटर न्यूरॉन डिजीज जब हम कहते हैं, इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर मोटर न्यूरॉन डिजीज? क्या ट्रीटमेंट है इसका? इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं. तो पहली बात ये, देखिए बहुत लोगों को अभी न्यूरो रीजनरेशन की वजह से दीज थिंग्स आर हैपनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, you know, the diabetic population is increasing a lot. तो उससे न्यूरोपैथी भी होता है. सो न्यूरोपैथी डायबिटीज से हम कोरिलेट जरूर कर रहे हैं, मगर डायबिटीज से नहीं होता, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता. अगर चीजों को आप सही बोले ना तो पर भी आप सोचेंगे कि इसको कैसे ठीक करें. नाउ व्हेन यू से ब्लड में शुगर ज्यादा है, डायबिटीज हो गई, तो दैट इज नॉट डायबिटीज, वो डायबिटीज नहीं होगा. दूसरी चीज के बहुत तरीके से अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज होता क्या है. इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. Nobody knows what is blood pressure. I am talking about modern medical science. उनको मालूम ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या. आपको लगता है कि उनको मालूम है, ठीक है ना. सो डू अ लिटिल. आपके हाथ में आजकल इंफॉर्मेशन एज है, फोन है, गूगल है, उसके अंदर आप ये ढूंढिए, ठीक है. आपको पता चलेगा. किसी को नहीं मालूम ब्लड प्रेशर क्या होता है. जैसे कि आपको मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, मगर आपको मालूम है मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता. आप बता दीजिए. आप तो आइडिया लगा रहे हैं. आपने तो आइडिया लगाया था मैं तो शुगर का मरीज हूं, मेरा तो TSH इतना बड़ा हुआ है, पर शाम को तो कम हो जाता. आप दवाई लेते हैं तो वो मरीज आप बने ही रहेंगे. इफ यू वांट अ टैग ऑफ अ डिजीज, कीप टेकिंग मेडिसिन. है ना, कई लोगों को अच्छा भी लगता है कि मुझे ये बीमारियां, दे एक्चुअली काउंट नंबर ऑफ डिजीज. कि मुझे किसी ने बोला नहीं मुझे तो 5 बीमारियां, कहेगा नहीं मुझे तो 7 है. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, तो आप ठीक तो होंगे नहीं. तो मोटर न्यूरॉन डिजीज का मतलब क्या है एंड व्हाई इट हैपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, देन न्यूरो डिजेनरेशन, देन इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो रहा,
न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं। आपने बोल तो दिया मोटर न्यूरॉन डिजीज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? किसी ने नामकरण तो कर दिया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया थी, मगर इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपको स्कैन, जितने भी आपके डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, क्या उससे कोई भी ठीक होता है? केवल पता लग जाता है, थोड़ा पता लग जाता है, लेकिन शायद उसके पीछे का कारण भी पता नहीं लगता। मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया तो क्यों हो गया भाई? आप थोड़ा पीछे जाओ ना, थोड़ा क्वेश्चन पूछो, क्यों हो गया? स्लोली यू कैन मूव बैक टू बेसिक्स। तो पहली बात, आपको सिंपल सॉल्यूशन बता दूं पहले। ऐसा ज्ञान चर्चा तो बहुत चलती है, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं ना, सारा गूगल दिमाग में भर लीजिए तब भी ठीक नहीं होंगे। तो एक ज्ञान चर्चा से कोई ठीक नहीं होता। ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में प्रॉब्लम क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर लिम्स। आप अपने हाथ पांव को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना? आप अपने हाथ पांव को कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल? सो उंगलियों को फंसा लीजिए, जस्ट डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता चलेगा ना। उंगलियों को फंसा लीजिए, जस्ट क्लैस्प योर फिंगर्स एंड पुल, खींच लीजिए, खींचिए जोर से एंड होल्ड, रोक लीजिए। आपने सांस रोक रखी है, सांस रोका है आपने पीछे। हाउ डू यू कंट्रोल एनी एक्टिविटी? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। तो आप अपने लिम्स पे कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। तो अगर आपके लिम्स पे कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहली चीज क्या खत्म हुई आपके शरीर के अंदर? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई। इसका मतलब है सांस रोकने की क्षमता से ही रीजनरेशन होता है। अब आइए उस बात पे। तो आपका न्यूरो डीजेनरेशन जो हुआ है उसको डायरेक्टली कोरिलेट कीजिए, आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई तो न्यूरो डीजेनरेशन हो गया। रीजनरेशन करना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी रीजनरेशन होगा, पहली बात। लेकिन आपका ये ड्रॉप फुट और जो मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये तो इमीडिएटली आप देखोगे आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। The moment you start Kumbhak, you'll see the control over your body will increase. ठीक है, सीधा 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 इसको देखिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसे आप साइंस समझते हैं वो साइंस है नहीं, ऐसा आपको लगता है कि वो साइंस है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आपको बर्बाद कर देंगे वो, ठीक है ना? किसी वो नाम रखा हुआ है उन्होंने साइंस, हमसे साइंस चुरा के ले गए ये सारे गोरे। भारतीयों से साइंस हमारी देन है, भारतीयों की देन है दुनिया को, हमसे चुरा के ले गए ये सारे गोरे, लुटेरे हैं, डकैत हैं सारे के सारे। नाम देखो कैसा कैसा रख दिया। तो डकैतों की बात ना माने, ठीक है? अपनी बुद्धि को खोलें, आप समझदार लोग हैं, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग इंडियन हैं, चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तब आपको एक्चुअल साइंस पता चलेगा। हमारे खून ही, जो हमारा भारतीयों का खून है ना, वो साइंस है, आप समझें इस बात को। Okay, Ganga ma'am writes about suffering from spondyloarthritis. I'm taking medicines, but still I have body pain, neck pain, and knee pain. Please help me. आइटिस का मतलब क्या है? आर्थराइटिस आपने बोला ना, स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस ऐसा ना। देखिए आप पढ़ रहे हैं ग्रीको रोमन लैंग्वेज, ठीक है ना? आपकी लैंग्वेज है नहीं है। अब आपको वो अपनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो पहली बात तो किसी को आपको समझना भी है ना, तो उसकी लैंग्वेज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी डीप है। क्योंकि एक्चुअली में ग्रीको रोमन लैंग्वेज में लाइफ की, जीवन की गहराई को समझाने का कोई तरीका नहीं। सो इट्स अ वेरी सरफेस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन कह दिया, ठीक है ना? इन्फ्लामेशन जो होता है उसका मतलब एक ज्वलनशीलता है आपके शरीर के अंदर आ गई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेटाबॉलिज्म, जब मशीन खराब होती है ना तो उसकी एफिशिएंसी खराब होती है। आपकी गाड़ी का अगर इंजन ठीक नहीं है ना तो ज्यादा डीजल खाएगा, ज्यादा पेट्रोल खाएगा, और क्या बनाएगा? टॉक्सिन ज्यादा बनाएगा ना, पोल्यूशन ज्यादा करेगा। तो आपका भी इंजन ऐसा ही हो गया। तो वो जो जिसे कहते हैं गार्हपत्य अग्नि अगर ठीक नहीं है तो आप जो खाते हैं ना उसका टॉक्सिन ज्यादा बनता है।
अगर टॉक्सिन आपके शरीर में होगा तो क्या करेगा, शरीर को फेंकने की तो कोशिश करेगा, अगर लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कमजोर है तो वो टॉक्सिन अंदर है, वो ज्वलनशीलता ला रहा है, तो आपके जोड़ों पे सबसे ज्यादा असर करेगा। इसी को आर्थराइटिस कहते हैं। सिंपल, कितना आसान है तरीका इसको समझने का। इसी को आर्थराइटिस कह दिया, ठीक है ना। अब आर्थराइटिस अगर बोलते हैं, इसको नाम रख देते हैं, तो इससे और भी बहुत आप बड़े बड़े नाम रख सकते हो, संस्कृत में भी नाम रख सकते हैं। आपको बोलेंगे, आपको वो भी नहीं समझ में आएगा, मगर नहीं, किसी ने कहा कि नहीं हम ही नाम रखेंगे, चलो वही उन्होंने रख दिया। मगर इनको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब कोई दवाई नहीं है ऐसे ठीक होने की, कोई दवाई नहीं है ऐसे ठीक करने की। पूरे शरीर में दर्द है, दर्द तो होगा, इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। जैसे आप शरीर को ठंडा कर लेंगे ना, आपको आराम मिल जाएगा। चलो सोल्यूशन बताऊं आपको, सिंपल सोल्यूशन बताता हूं ये, लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन है, क्विक फिक्स है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे यूट्यूब में आजकल आते हैं साहब, बताओ ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, है ना, घिया खा लो गुड़ के साथ में, कुछ भी बोलो तो आप ठीक हो जाओगे। आज तक तो कोई ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका शरीर, इस आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, इसकी शक्तियों को ठीक नहीं करेंगे, इसके ऑर्गन्स को रिवाइव नहीं करेंगे, इसके रीजनरेटिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं ना, उसको पचाने के लिए भी आपके शरीर को जोर लगता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने भोजन तो सारा का सारा जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, दोबारा से फिरंगी चक्कर में पड़ गए, आपने सारा विनाश ही कर दिया अपना। जेनेटिकली जीएम क्रॉप खाते हैं सारे के सारे, शरीर इसको पहचानता नहीं है, तो टॉक्सिन ज्यादा ही बनेंगे। अच्छा, आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको समझ में आएगा। आप जब खड़े होते हैं ना, आप जब खड़े होते हैं ना, तो आपकी सांस ज्यादा आती है, इनहेलेशन ज्यादा होती है आपके शरीर से। जब आप लेटते हैं ना, तो एक्सहेलेशन ज्यादा होता है आपके शरीर में। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, इसलिए कह रहा हूं, आप साइंस नहीं पढ़ रहे। आप साइंस ही नहीं पढ़ रहे, केवल नाम, साइंस के नाम के नीचे कुछ उल जुलूल पढ़ रहे हो। आपके बच्चे उल जुलूल चीजें पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में जाकर। तो जब खड़े होते हैं ना, तो इनहेलेशन ज्यादा होता है, जब लेटते हैं ना, तो एक्सहेलेशन ज्यादा होता है, जब बैठते हैं ना, तो सम होता, बराबर होता। इसीलिए हमारे देश में जमीन पे बैठ के काम होता है। भोजन भी करेंगे तो कैसे, समभाव में करेंगे, तो बैठ के करें। काम कैसे करेंगे, खड़े होकर नहीं करें। लेकिन आजकल लेडीज सारी के सारी किचन में कैसे भोजन बना रही है, खड़े होकर बना। आपके चेयर ऊंचे हो गए हैं, है ना, वो खड़े ही है, जमीन से नहीं, जमीन के नजदीक नहीं है आप, तो सम नहीं होगा आपकी सांस, समभाव में, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ेगा। रीजनरेशन डीजनरेशन को अगर बराबर नहीं करेंगे, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो आप बैठ के काम नहीं कर रहे, तो आप फिरंगी चक्कर में पड़ गए हैं, आप उनके एटिकेट्स में पड़ गए हैं, जो कि निरे बेवकूफ हैं। पूरी पृथ्वी ने इतनी बेवकूफ प्रजाति अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी जितने की ये वेस्टर्नर्स फिरंगी। हिस्ट्री में इतने बेवकूफ लोग पैदा नहीं हुए। कोई अपने ही पांव को काटता है क्या, ये ऐसे ही है, कुछ भी करेंगे ये। तो बैठ के तो आप कोई काम करते नहीं, बैठने को तो आप रूडिमेंट्री दकियानूसी मानते हो। अरे बैठना ही साइंस है, बैठ के करना कोई साइंस है। अलग अलग तरीके से बैठने का तरीका, यहाँ पे एक तरीके से रिवाज था, अलग अलग काम करें, अलग अलग तरीके से बैठे। लेकिन अगर आपने थोड़ा पाँव नीचे ऊपर और फिर नीचे कर लिया, फिर क्या होगा, फिर आपके शरीर का डिटॉक्स थोड़ा ज्यादा होगा, यानी शरीर थोड़ा ठंडा होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। यानी पाँव ऊपर रखे, थोड़ा 3-4 तकिया लगा लिया, कमर के नीचे 2 तकिया 1 तकिया लगा लिया, सिर को नीचे रखें, ऐसे थोड़ा स्लैंटिंग, पाँव ऊपर सिर नीचे। अगर 20-25 मिनट से लेके आधा घंटा अगर आप लेटते हैं, खाने के भोजन के बाद नहीं करेंगे, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए 2.5-3 घंटे के बाद में कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। पानी की पट्टी इन्फ्लेमेटरी जगह, जहां पे इन्फ्लेमेशन हम लगाएंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी आप धीरे धीरे करके अपनी डिपेंडेंसी ऑन पेन किलर्स हटाएंगे, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये गारंटीड है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर आप सो कॉल्ड करंट चीजों को अगर ये आप सुनते रहे और दवाई खाते रहे और एक नहीं 50 दवाइयां दे देते हैं, तो दैट विल नॉट हेल्प। प्लीज डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाए। इट इज लुकिंग एट यू फॉर हेल्प,
आपका शरीर अभी देख, आप तो कुछ करने ही नहीं देते शरीर को ना, तो आपकी तरफ में मुंह ताके, बेचारे की जो लैंग्वेज है वो भी नहीं समझता कोई। तो शरीर को क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर देखेंगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखेंगे ना तो इट इज वेरिएबल। यानी कि आपका शुगर लेवल अगर इस वक्त में 200 है तो 1 मिनट के बाद में चेंज होता है, 5 मिनट के बाद में चेंज होता है, 10 मिनट के बाद में चेंज हो जाता है, ये वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ योर बॉडी इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज समथिंग विच कैन क्रिएट सॉल्यूशंस। जैसे आयुर्वेद में, अब तो आजकल तो आयुर्वेद भी एलोपैथी की तरह रन कर रहे हैं वो लोग, बट बेसिकली आयुर्वेद लुक्स एट द बॉडी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, है ना। तभी हम इसको वात पित्त कफ, ये ना क्वालिटी है, क्वालिटी। ओजस तेजस वर्चस सत्व रज तम, ये सब क्वालिटीज हैं आपके शरीर के, 20 क्वालिटी हैं। इसी क्वालिटेटिव टर्म्स में आयुर्वेद हमेशा देखा करता था। आजकल वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं एलोपैथी को। दैट इज नॉट द राइट वे अप्रोच टू इवन आयुर्वेद, बिकॉज आयुर्वेद इज अ बिगर साइंस एंड द रियल साइंस। आप एक फेक साइंस के चक्कर में अपने रियल साइंस को भी फेक ना बनाएं, ठीक है ना। आप भी जानते हैं, देखिए स्माइल कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, इतना क्यों लटका रखा है, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा स्माइल करो। हाँ, अभी पता है आपको कितना केमिकल रिएक्शन हुआ आपके बॉडी में एक स्माइल के लिए? 1 लाख से भी ज्यादा। तो सपोज आपने कंडीशन रख दी कि मुझे जब तक सारे केमिकल रिएक्शन का पता ना लगे आई विल नॉट स्माइल, तो अब मुझे बताइए कि कब स्माइल करेंगे आप? तो दिस इज लाइक मॉडर्न साइंस हु डजंट हैव अ क्लू अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। इसको कुछ मालूम नहीं कि जीवन चलता कैसे, मगर कंडीशन ऐसे ही लगा रखी, काट काट के काट काट के काट काट के, वी विल जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। दिस इज नॉट साइंस। स्माइल करने में आपको क्या लगा, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ा? नहीं, आप जब मर्जी चाहे स्माइल कर सकते हैं। सी, यू हैव कंट्रोल ओवर millions of life factors without even knowing it, if you just try to understand life in terms of quality, तो आप कंट्रोल में है। if you decipher life in terms of quantity, तो कोई फिरंगी कंट्रोल में आ जाएगा, कोई दूसरा चालबाजी करेगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। उन्होंने वही चालबाजी की, आप उसमें फंस गए। आपकी लाइफ आपके ही कंट्रोल में है, पर आप उस तरफ देख नहीं रहे, उस तरफ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट। Okay, is it possible to regenerate damaged brain cells? मैंने बता दिया, उसका आंसर कर दिया, पहले ही कर। Okay, so we will be taking up the questions from the raised hands. आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय लक्ष्मी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय लक्ष्मी मैम, yes, you're unmuted, please. Mona ma'am. नमस्कार जी। Namaskar. हेलो। Good evening, sir. Yes, एक एक Jayalakshmi, उसके बाद मोना मैम आप पूछ सकते हो। जयलक्ष्मी मैम, you can continue. नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा 2-3 ऑपरेशन हुआ है। मेरा 2 सिजेरियन है, वो ये उसके बाद हिस्टेक्टमी भी हुआ है। लेकिन मेरा 30 साल से मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। अभी 5 साल से मेरा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती है। आपके शरीर में ना, अब ये चीज सभी को अब समझना पड़ेगा, हिस्टेक्टमी आजकल बहुत कॉमन है। अच्छा। हाँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम आया, हिस्टेक्टमी कर दिया। आपके मालूम है आपके बॉडी में कोई भी चीज फालतू नहीं डाला गया कि आपके शरीर में सभी कुछ का एक काम होता है। फॉर एग्जाम्पल योर यूट्रस, आजकल यूट्रस रिमूव कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब काट के रिमूव कर देते हैं, ओवरीज रिमूव कर देते हैं। तो उनका काम क्या है? उनका काम है ट्रिगर देना। हार्मोन का ट्रिगर वहां से आता है, आपके यूट्रस से आता है, आपके फैलोपियन ट्यूब से आता है, आपके ओवरी से आता, आपके गोनाड से आता, ठीक है ना। तो गोनाड का अगर हिस्टेक्टमी कर दिया तो फिर क्या होगा? उसका ट्रिगर ठीक से नहीं आया।
ट्रिगर अगर ठीक से नहीं आएगा तो क्या होगा? ट्रिगर अगर ठीक से नहीं आएगा तो क्या होगा? आपके बॉडी में हार्मोन का फ्लो ठीक से नहीं होगा। कोई भी काम आपके शरीर में हार्मोन से होता है। ये बताइए, डाइजेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन इस्तेमाल होते हैं? लॉट ऑफ हार्मोन, मगर आपने कुछ नाम तो सुना हो। वी कैन नॉट फाइंड एवरी हार्मोन विथ ऑल द नॉलेज हाउ मच एलोपैथी नोज अबाउट ह्यूमन बॉडी, नॉट इवन 1%, 1% भी नहीं जानते। तो आपने सुना होगा इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन। अच्छा, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मगर आपने कम से कम इनमें से कुछ तो सुना होगा। T4, T3, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, ऐसा कुछ कुछ नाम सुना होगा। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ कुछ नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं ना। ये शरीर में जब इस्तेमाल होना होता है तब निकलते हैं, और उसके लिए ट्रिगर चाहिए, हमारे बॉडी को ट्रिगर चाहिए। सपोज कीजिए आपने लिवर को डैमेज कर दिया दवाई खा के, तब आपका इंसुलिन का ट्रिगर ठीक से नहीं आएगा, ठीक है ना? और दूसरी बात, लिवर कमजोर हो जाएगा तो वो इंसुलिन को लेगा भी नहीं, अगर आएगा भी इंसुलिन तो भी नहीं लेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, यानी आपके बॉडी में इंसुलिन तो ब्लड में है मगर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये कि आपने ट्रिगर सिस्टम ही खराब कर दी। जैसे लिवर पे बम्बार्ड किया, सबसे पहला क्या किया आपने? वो ट्रिगर ही खराब कर दिया। आप पे पेट में केमिकल डालो, अब जो पेट का माइक्रोबायोटा है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर सिस्टम। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए आपके पेट में, है ना? हमारे पूर्वज बड़ा इस्तेमाल करते थे, फर्मेंटेड चीजें इस्तेमाल करते थे टू करेक्ट द माइक्रोबायोटा। अचार उसमें से एक है, कंजी हो गया, है ना? किसी चीज को फर्मेंट, साउथ में जैसे डोसा इडली को फर्मेंट कर देते थे, तो चावल को भी फर्मेंट कर दिया जाता था। गाजर को, अभी जैसे काली गाजर आएगी, उसमें बड़ा हेल्दी माइक्रोबायोटा होता है, उसकी कंजी बनाई जाती है। पंजाब की तरफ में उसको कंजी बनाते हैं, मध्य प्रदेश में कंजी बनाते हैं गाजर की, है ना? मूली का इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है ताकि आपके गट का माइक्रोबायोटा सही रहे, क्योंकि उससे ट्रिगर मिलता। अगर वो माइक्रोबायोटा ही ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाए। आपको मालूम है, अगर पशु किसी, आजकल तो पशु है नहीं, पशु अगर खाना बंद कर दे तो क्या करते थे? जो नमक है ना, उसके जीभ पे रगड़ा जाता था। आप भी करके देखो कभी, जीभ पे थोड़ा नमक ऐसे रगड़ के देखो, देखिए आपका ना सलाइवेशन बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, एकदम से भूख आ जाएगी। तो यानी कि मुंह से भी ट्रिगर हो रहा, मुंह भी ट्रिगर, आपका जो माउथ है ना, इट्स अ ट्रिगर पॉइंट। सपोज यू पुट इन सम काइंड ऑफ अ केमिकल, है ना? माउथ वॉश डाल रहे हो आप, क्या क्या डाल रहे हो शरीर में, जरा सोचो तो सही, क्या क्या डाल रहे हो आप शरीर में, है ना? वो जो पेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर केमिकल भरा पड़ा। जो आप सुबह उठ के पेस्ट करते हो, जो आप माउथ वॉश करते हो, जो आप डीओ लगाते हो शरीर के, जो आप भोजन कर रहे हैं, सब जगह केमिकल। आपने तो सारे ट्रिगर सिस्टम बर्बाद कर दिए। तो ट्रिगर सिस्टम अगर आपका बर्बाद हो जाएगा तो आपके बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस तो कॉमन चीज होगी, कॉमन चीज होगी, विच इज कॉमन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इवन किड्स हैव दिस प्रॉब्लम, बच्चों को भी प्रॉब्लम है। तो ये शरीर ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये फिरंगी बुद्धि नहीं समझ सकती लाइफ को। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके पास इतनी बुद्धि है ही नहीं। आप लोगों के पास है तो आप पीछे हटके रखे हो, आप कुछ कर नहीं रहे इस तरफ में। तो ये ट्रिगर सिस्टम अपने शरीर का क्यों खराब कर रहे हैं आप? जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डालते हैं तो आपके बॉडी का ट्रिगर सिस्टम खराब हो जाता है। अब हार्मोन तो आपको ठीक फ्लो नहीं होंगे, ना बनेंगे, बनेंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसका फ्लो ठीक नहीं होगा। सो हाउ मेनी लेडीज आर गेटिंग इनटू कंसेप्शन इशू? गर्भ धारण करने में कितनी लेडीज को प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी कितना बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है। मेल्स में, हर एक मेल के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट, बहुत इशू आ गया। मेंटल इश्यूज तो बोलो मत, सभी मेंटल डिजीज से है, मगर मेंटल डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं। सभी को मेंटल डिजीज है,
केवल टैग नहीं किया गया, क्योंकि दवाई नहीं है तो टैग भी करें तो क्या करें, नहीं तो सबको टैग कर दिया जाता, सबको मेंटल इश्यू है। तो ट्रिगर सिस्टम को अगर आप खराब करते हैं, और कैसे खराब करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। आप जब भी केमिकल लेते हैं ट्रिगर सिस्टम खराब होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, deviated environment, these are all contributors in disrupting the trigger mechanism of human body. तो ऐसे में ऑपरेशन जो कि एक हॉस्पिटल चलाने के लिए किया जाता है, why cesarean has become so common? 60% लेडीज को सिजेरियन हो रहा है। Cesarean is not required. If you prepare the lady for delivery, अगर प्रिपेयर करें तो सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिजेरियन करेंगे जब भी आप इंटरवीन करते हैं शरीर के साथ में, इसके साथ में कुछ जबरदस्ती करते हैं, तो इसका डिसरप्शन, इसका कामकाज का डिसरप्शन होता है, तो आपको प्रॉब्लम। जब भी आप एक ऑपरेशन कराएंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं हो गया। ऑपरेशन इज नीडेड ओनली एंड इन एन अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन। उसके अलावा बॉडी इज केपेबल इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। भाई आपका स्लिप डिस्क हो गया, एक जगह ठीक करोगे दूसरी जगह हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक शोल्डर में ऑपरेशन कराओगे दूसरी जगह हो जाएगा। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट कराओगे, जो भी अच्छा था वो भी खराब हो जाएगा। हिप रिप्लेसमेंट कराओगे तो अब तो उठ बैठ भी नहीं पाएंगे। सर्जरी का मतलब ही है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको ये कहा जाता है कि घुटने खराब हो गए, घुटने रिप्लेस करवा लो, हिप खराब हो गया, हिप रिप्लेस करवा लो, हार्ट खराब हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, लिवर खराब हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी खराब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट, इसका मतलब उनके पास कोई इलाज ही नहीं है। कभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अच्छा कर दिया। आप हमेशा जब भी ऑपरेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो आप इसकी लाइफ को कम करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए मर्म ज्ञान की बहुत जरूरत है, जो कि किया नहीं। ऑपरेशन तो इंडिया की देन है दुनिया में। सो आप इसको ठीक कीजिए, इसका अलाइनमेंट करेंगे, इसका मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो ठीक। Okay, Mona ma'am, you can please ask your question. You're already unmuted. Yes, ma'am. Okay, Good ma'am. evening. Good evening. Namaste, Good Swamiji. evening. Only Mona ma'am, please, Ma'am. one by one. Yes, Okay, ma'am. sir, I have some issues like I have collide nodule thyroid. As doctor suggested me to operate for that, and but it is not harmful to me. What does it mean? आपने कभी इसको गूगल किया? क्या नाम बताया आपने? Collide nodule thyroid. नोड्यूल्स हैं आपके थायराइड। Nodules, yeah. नोड्यूल्स तो बॉडी में क्यों होते हैं? नोड्यूल्स पहले आप समझ जाइए, ये नोड्यूल्स बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, इनको कई किसी जगह पे नोड्यूल्स बोल रहे हैं, किसी जगह पे सिस्ट बोल रहे हैं, है ना, कि किसी जगह पे स्टोन बोल रहे हैं, किसी जगह पे इसको ट्यूमर बोल रहे हैं, किसी जगह पे अलग अलग नाम से, मगर इट्स एन ओवर, ये एक ओवर ग्रोथ है। ओवर ग्रोथ कब होगा? जैसे मैंने बताया कि अगर आप लिवर को बम्बार्ड करते हैं, लिवर कमजोर हो जाएगा, तो इट विल नॉट यूटिलाइज इंसुलिन प्रॉपर्ली। ठीक है ना। दूसरा, लिवर में T4 कन्वर्ट्स टू T3, the hormone that gets utilized for metabolism in your body, for protein ecosystem, प्रोटीन बनाने के लिए। आपका शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। और आपको पिछले 20 सालों 25 साल से बोल रहे हैं ज्यादा प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। तो लोगों की किडनी खराब हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों को बहुत इश्यूज हो रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। अगर आप बाहर से ज्यादा डालेंगे, when you are not designed for higher protein, because mother's milk has the least amount of protein. जो माँ का दूध होता है ना, the mother's milk have the least amount of protein among all milk in the animal kingdom. So what happens when, and just mix all these factors together. If your liver is not functioning properly,
Then T4, tetrahydrothyroid T4 will not convert to T3 properly. But my Right. sir, I want to interrupt you. But my 3, T4, TSH functions are normal. ये किसने बताया? नहीं no sir, I have just confirming कि मतलब ये always I reporting it कि it is normal है ना, ये आपके functions normal है, but you have colloid noodle क्योंकि I have मतलब पूरा एक गांठ बनी हुई है गर्दन में सर, वो बाहर को निकला हुआ है पूरा, लेकिन जो functions करवाते हैं जब उसका तो वो functions normal आते हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप सोचते हैं कि आपके सारे टेस्ट सही होते हैं, ऐसा सोचते हैं आप? मतलब तो फिर आपको क्या, फिर मैं क्या बताऊं? फिर मैं आपको क्या बताऊं? नहीं सर, मैं नहीं कह रही है कि रिपोर्ट सही आती है, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाओ तो वो कहते हैं कि नॉर्मल है फंक्शन आपका। भाई देखो, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कि आपके टेस्ट सही नहीं बता। पहली बात, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, ये वेरिएबल है, आपके नंबर्स वेरी करते हैं बहुत ज्यादा। कई लोगों का क्या होता है, जैसे फीवर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोगों को क्या होता है, एक तरीके का फीवर होता है, शाम को ही आता है। आप सुबह फीवर टेस्ट तो नहीं होगा और डॉक्टर बोलता है कि नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इसको फीवर आएगा। तो बॉडी के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। और मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, वो यूजेबल। आपको मालूम है पानी की क्वालिटी होती है, सेम H2 have different certain water get absorbed more in your body, certain water do not get absorbed in your body. तो आपको बीमारी होती है तो आमतौर पे कहना होता है पानी सूट नहीं किया, तो आप टेस्ट करा लो, पानी टेस्ट करा लो, वो H2O ही मिलेगा। ठीक है ना, इंसुलिन का टेस्ट करा लो, इंसुलिन ही मिलेगा, बट यूजेबल इंसुलिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यूजेबल ग्लूकोज मिलेगा नहीं, इसके तो टेस्ट ही नहीं होता। इसका नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो पहली बात, आपका जो डायग्नोसिस किया जा रहा है ना, उसकी वैलिडिटी कितनी है वो भी क्वेश्चन मार्क है। उससे क्या हम पता कर पा रहे हैं कुछ, उससे क्या हम ठीक कर पा रहे हैं किसी को? किसी को तो ठीक नहीं कर पा रहे, मगर आप टेस्ट करा के ऐसे खुश हो जैसे आप ठीक हो गए। नहीं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकल रहा सर, पूरा बिल्कुल डेड एंड है। सॉल्यूशन बता रहा हूं ना, तो सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले अपने आइडियाज तो खोलिए, अपने आइडियाज इतने बांध रखे हैं कि मेरा टेस्ट नॉर्मल है। टेस्ट नॉर्मल है तो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए ना। सॉल्यूशन तो नहीं है, सॉल्यूशन तो नहीं है। तो आप जो टेस्ट करा रहे हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम के साथ में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ओके, तो आप जो टेस्ट, हाँ, आप जो क्लैरिफाई, उसका कोई लेना देना ही। ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक और चीज बता। तो अब T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, आपके लिवर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब, जब मैं कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका प्रोटीन इकोसिस्टम में इंपैक्ट है, असर है। ये मैं दूसरी तरीके से फोर्टिफाई करता हूं। इंसुलिन भी आपके लिवर जो हो आपके शरीर में नहीं जा पा रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई आपकी बॉडी। तो क्या होगा, ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन होता है, कहीं भी जाके टिश्यू को बढ़ा देगा, ग्रोथ कर देगा। ठीक है ना। अब प्रोटीन इकोसिस्टम आपका वनरेबल है, नंबर आपके कुछ भी आ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वनरेबल है आपका प्रोटीन इकोसिस्टम। और इंसुलिन इसमें क्या कर रहा है, उस वनरेबिलिटी पे खेल रहा है, वो कहीं भी ज्यादा जहां वनरेबिलिटी है वहां पे ग्रोथ कर देता है। आजकल इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी पीसीओएस के एपिसोड्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी बात, सिस्ट फॉर्मेशन बॉडी के अंदर, ग्रोथ, ओवर ग्रोथ बॉडी के अंदर, ये अगर पूरे पॉपुलेशन को लिया जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन को, और अगर रिजल्ट निकाले जाए 50 साल पहले और 50 साल बाद आज के टाइम पे, तो आप देखेंगे ये एपिडेमिक बन चुका है। इसी वजह से कैंसर जो है 12% के, यही चीज बाद में चल के कैंसर बन जाती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ में मिक्स होके। तो पहली बात, आपके शरीर के अंदर अगर नेचुरल देखें, आज की कंडीशन ना देखें, तो ऊपर भी नोड्यूल्स होते ही हैं।
क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वापस समझिए, आपके शरीर के जी। अंदर छोटी मोटी गांठें Already- होंगे ही, वो प्रॉब्लम नहीं करती। वापस समझिए क्या बता रहा हूं, कि छोटे जो छोटे भी हैं अगर आपके शरीर के अंदर, जनरली वो प्रॉब्लम नहीं करते। अगर आप ऑपरेट भी करा लेते हैं तो उसका कोई, इससे कोई मतलब नहीं है ऑपरेट कराने के, क्या हो जाएगा वो, अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अभी एक्चुअली में कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन फैंसी चीज है आजकल, है ना, कुछ भी दिख रहा है अंदर, क्योंकि देखने की हमने कुछ ना कुछ तरीका निकाल लिया अंदर, झांकने का तरीका निकाल लिया, तो अब हमारे को कुछ चाहिए भाई, कुछ कॉस्मेटिक चेंज तो करें, कुछ तो काम करें शरीर के अंदर। ये इंसानी खुराफात है दिमाग, ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। कई लोगों को प्रॉब्लम जो होता है फिजिकल नहीं होता, कई लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है, बट वो फिजिकल प्रॉब्लम की तरीके से ट्रीट की जाती है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप ऑपरेट कराएं कि नहीं कराएं, ये आपका डिसीजन है। ये सारा बताने का, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैं ऑपरेट कराएं नहीं कराएं ये आपका डिसीजन, कराना चाहिए कि नहीं कराना ये आपका डिसीजन है। लेकिन वो जो कंडीशन खराब है उससे दोबारा नोड्यूल्स आ जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे। आप ऑपरेट कराओगे 6 महीने बाद दोबारा दिख देंगे, और भी बड़े होके दिखेंगे। अब क्या करोगे? तो ट्रीटमेंट नहीं है ऑपरेशन, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैनेजमेंट हो सकता है, थोड़ा आपने करवा लिया किसी वजह से, अगर जरूरत है तो करवा लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट तो नहीं है ऑपरेशन। ट्रीटमेंट तो वही है ना कि आपके लिवर को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, हार्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अंदर फ्लो आपका ठीक करना पड़ेगा। वो तो आपको थेरेपी करना, अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज अष्टांग चिकित्सा ऑल अबाउट। अष्टांग चिकित्सा उन सब चीजों को ठीक करने के लिए। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Good morning, sir. Good evening, sir. हाँ बोलिए। Sir, actually, my age is 19 years old और मेरे फेस में और ब्रेन में ना बहुत ज्यादा मसल स्पैज़म्स होते हैं, मसल्स हिलते हैं और मैं वॉश नहीं कर पाती फेस वॉश करने पर ना फेस में ज्यादा खिंचाव आ जाता है और ऐसे लगता है कि जो नसें हैं वो फट जाएंगी। हाँ, स्पाज्म क्यों होता है आपके शरीर में, थोड़ा सा समझेंगे इसको, स्पाज्म क्यों होगा। कभी कभी मालूम है आपको, बचपन में कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पेट में मरोड़े आते हैं, स्पाज्म आता है, और लेडीज ने ये अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे उनको स्पाज्म आता है जिससे पेन होता है। ये स्पाज्म बॉडी में होता क्यों है? पहली बात, आप जब भी देखें ना, जब भी ऐसा बोले कि बॉडी में स्पाज्म, बॉडी में स्पाज्म, साइलेंस प्लीज। स्वामी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बॉडी में स्पाज्म हो रहा है, इसका मतलब होता है कोई फ्लो ठीक नहीं हो रहा, तो बॉडी स्पाज्म करके फ्लो ठीक करवाना चाहता, ठीक है ना, फ्लो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, फ्लो अगर देखें तो बॉडी में अलग अलग जगह पे फ्लो, इफ यू लुक एट योर बॉडी इट्स जस्ट फ्लो, ब्लड फ्लोस, फूड फ्लो, हार्मोन फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, एवरीथिंग फ्लोस, हर चीज फ्लो कर रही है, तो फ्लो को रोकना नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम कहते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट ब्लॉकिंग द फ्लो, जिसे हम दवाई कहते हैं ना, मेडिसिन, हालांकि इसको दवाई नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, तो मेडिसिन नहीं कहना चाहिए, मगर क्या करें, तो ब्लॉकिंग द फ्लो कैन नॉट बी कॉल्ड एज मेडिसिन ना। अगर शरीर के ऊपर की तरफ में ये हो रहा है, तो ऐसा शरीर के ऊपर की तरफ में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना, तो आपके शरीर में, इसको ऐसा समझिए कि चेस्ट से ऊपर का पार्ट कफ पार्ट है। आपको थोड़ा मैं आयुर्वेद जिस तरीके से चीजों को समझता है समझाने की कोशिश करता हूं। मिडिल पार्ट पित्त पार्ट है, लोअर पार्ट वात पार्ट है। तो कफ का मतलब क्या होता है? कफ बेसिकली आपका भोजन है, इट्स योर फूड। नाउ दिस कफ हैज टू मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। कफ को मेल्ट होके कन्वर्ट करना, यानी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा होगी, अगर जठराग्नि ठीक होगी तभी ये कफ मेल्ट होके अलग चीजों में कन्वर्ट होगा।
तो डाइजेशन अगर वीक होता है ना, तो कफ मेल्ट नहीं या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, यानी फूड ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसका फ्लो रुक जाता है। तो इसको आयुर्वेद के टर्म्स में गुल्म कहते हैं, गुल्म, यानी कि फ्लो जो है रिवर्स हो गया, फ्लो जो है रिवर्स हो गया। ये अगर कुछ समय तक रहे तो इससे सिर के ऊपर की तरफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपको सिर का दर्द रह सकता है, आंखों में भारीपना हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। चीजें अगर ऊपर फ्लो नहीं होती, मसल कमजोर हो सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस आ सकता है, ठीक है ना। आपके मसल्स कमजोर होने के कारण स्पाज्म हो सकता है, क्योंकि वो फ्लो तो बॉडी करवाना चाहेगी ना, तो स्पाज्म करवाएगी। तो ये पार्किंसन क्रिएट कर सकता है, ये लॉन्ग टर्म में पार्किंसन और फिर डिमेंशिया क्रिएट करता है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से बताया कि अगर आपके बॉडी में कफ का फ्लो यानी हीट फैक्टर ठीक नहीं है, तो फ्लो नहीं होगा, मसल रीजनरेशन नहीं होगा, नसों में न्यूरो रीजनरेशन नहीं होगा, बॉडी उसको रीजनरेट करने के लिए, फ्लो को बनाने के लिए स्पाज्म क्रिएट करेगा। एंड इट इज अ हेल्पिंग मैकेनिज्म। योर बॉडी नेवर डज हार्म टू इटसेल्फ, अपने को कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन इस पे बहुत ज्यादती होगी तब ये क्लोज डाउन कर देगा अपने आप को। जैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादती किया तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम विल गिव अप, तो आपका बॉडी गिव अप नहीं करता इतनी जल्दी। सो इट डज एवरीथिंग टू रिवाइव इट्स प्रोसेसेस, टू रिवाइव इट्स मैकेनिज्म, टू लिव, जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है आपका शरीर। तो ये स्पाज्म हो रहा है आपको। अभी स्पाज्म को रोकने के लिए क्या तरीका होता है? जब भी अगर आप स्पाज्म को रोकना चाहें, सपोज कीजिए, I'll tell you an example. Even if you try to hold on something which is अगर कांप रहा है हाथ आपका, तो रोकने के लिए क्या करते हैं? आप तो टाइट करते हैं ना, थोड़ा टाइट पकड़ते हैं, है ना, थोड़ा टाइट पकड़ के रोकते हैं। तो आप सांस रोक के टाइट करते हैं किसी चीज को। When you tense anything, you hold your breath. तो सांस, एक तो स्पाज्म को इमीडिएटली अगर आपको रोकना था, if you do कुंभक after a certain period of time, स्पाज्म जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो कम हो जाए। बट डू नॉट ट्राई टू स्टॉप एवरी काइंड ऑफ स्पाज्म। हर एक स्पाज्म को हमेशा रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इट इज हेल्पिंग यू। सो इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। कुंभक करें, वो अपने आप में नॉर्मल स्पाज्म होगा और ठीक हो जाएगा, और बाद में रुक जाएगा स्पाज्म आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड। एक और चीज आपको बताऊं मैं, अगर आपके चेहरे पे होता है ना स्पाज्म, तो आप थोड़ा गर्मी देंगे ना उस एरिया को, अग्नि चिकित्सा, थोड़ी गर्मी देंगे ना तो स्पाज्म कम हो जाएगा। यानी गर्म पानी का टॉवल थोड़ा मुंह पे डालेंगे ना तो आपको स्पाज्म कम हो जाएगा। Sir, sorry. हाँ? Sir, sorry to interrupt you, but I am also not able to wash my face. Yes, that is true. But thing is, आपका ट्रिगर जो है ना, ट्रिगर को अगर थोड़ा भी ठंडा पानी होगा ना, वो ट्रिगर करता है, ठंडा पानी ट्रिगर करता है। तो वॉश करने के लिए ना आपको अपने बॉडी टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मे बी इनिशियली यू विल हैव अ लिटिल डिफिकल्टी इवन विद दैट, हो सकता है उससे भी डिफिकल्टी हो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है। सो देन यू विल हैव टू डू कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। After that, it will get relieved, and then you can go towards all the supportive measures. है ना, शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो कुंभक आपके लिए मतलब जरूरी है, आपको डिसाइड करना है। एंड दिस एज, तो एज तो बहुत कम है आपकी, इस समय अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डू समथिंग विथ योर बॉडी, अपने बॉडी को हेल्प करें। you'll see in some time your life will become। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ सर। हाँ जी, बोलिए सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। मैंने एक आई हैव डन वन कोर्स ऑफ कुंभक फॉर 9 weeks ऑलरेडी, और वो आई एम फॉलोइंग द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, वो भी फॉलो कर रहा हूँ। तो सर एक आप अभी अब जो उन्होंने कि अनिल सर ने बताया था कि कुंभक, व्हाइल डूइंग कुंभक यू शुड गिव अप कपाल भाती, और कौन सी प्रैक्टिस? देखिए, कपाल भाती हम शुरुआत में छोड़ने के, और भी उन्होंने कहा था कपाल भाती प्लस वन मोर आसन, वो नहीं करना चाहिए।
नहीं, कपालभाति बोला था वो। वन मोर थिंग तो नहीं था, कपालभाति बोला था। और कपाल कोई और ब्रीदिंग के साथ और दो चीजें कही थी उन्होंने। नहीं, और चीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको। कपालभाति भी हम इसलिए कहते हैं कि वो थोड़े समय के लिए आप, unless and you have control over using with careful, मतलब it will give you more problem. कपालभाति is like amplifier, है ना, किसी चीज को भी बढ़ा देगा। तो अगर हेल्थ है तो हेल्थ को बढ़ाएगा, अगर डिजीज है तो डिजीज को बढ़ा देगा। अच्छा, So that is why we first create health, and then after a certain period of time, then you can do that. Otherwise, you'll not be able to control your factors, ना faculties. कपालभाति अगर करते रहेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि वो फंसा लेता है एक्चुअली आप। तो फर्स्ट क्रिएट अ लिटिल बैलेंस एंड हेल्थ, उसके बाद आप उसे एम्प्लीफाई कीजिए, तब चलेगा। तब हाँ, any other breathing exercise is to be given up, only Kapalbhati? Kapalbhati is to be given up, but one more thing I would say, do not work too much upon your body, है ना। आप ना केवल शरीर पे केवल काम ही ना करते रहें, आप जीने के लिए भी समय निकालें और कुछ भी लाइफ में पर्पस बनाया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो पूछते रहते हैं कि भाई इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इफ यू आर गिविंग 1 hour टू योर बॉडी, दैट्स मोर देन एनफ। हैव अ मोर पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैं एक और बात आपको बता देता हूं, आप अगर दिन में 14 घंटे अगर जगे रहते हैं और 14 घंटे में से 14 घंटे भी अपने हेल्थ पे काम करेंगे तो भी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मृत्यु को रोकते नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा इतना अपने आप को केपेबल बनाना होता है कि आप बहुत अच्छे से अपना पर्पस, कोई पर्पस बनाए जीवन में और उसे करें। सो डू नॉट डू टू मच ऑफ ब्रेथ वर्क। बहुत ज्यादा अगर आप काम करें, कब, क्योंकि कुंभक इज वेरी पावरफुल मीडियम, है ना, मेथोडोलॉजी, वेरी पावरफुल मेथोडोलॉजी। So if you work too much upon your body, then your body will not be able to bear it even. तो कुंभक भी जब side by side, if we start, sir, if we start with अनुलोम विलोम without holding breath, without doing कुंभक, वो कर सकते हैं ना? हाँ, अनुलोम विलोम आप कीजिए, अनुलोम विलोम कर सकते हैं without holding breath. Without holding. Good evening, sir. देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक और चीज बता देता हूँ सर। प्राणायाम जब हम बोल रहे हैं ना, अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है। यस सर। प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि आप अपने कार्मिक डिविएशन को सम बनाना चाहते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को आप बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अब जीना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू लिव इन योर लाइफ, यू वांट टू गो टुवर्ड्स मुक्ति। क्योंकि आपने सारा काम कर लिया, सारा जी लिया, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। नाउ यू वांट टू मेक इट सम, और समाधि की तरफ में जाना चाहते हैं। देन व्हाट यू डू, यू मेक योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन नेचुरली। अगर आप देखेंगे ना तो इनहेलेशन जो है थोड़ा फास्ट होता है, एक्सहेलेशन बहुत स्लो और लंबा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। नाउ इफ यू कैन मेक इट सम, अगर आप इसको सम बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्राणायाम। सो अनुलोम विलोम जो है ना, वो एक प्राणायाम की विधि है। उससे आपके जीवन में पर्पस जो है वो टूटता जाएगा, इट विल ब्रेक पर्पस इन योर लाइफ, और आप जो है वो जैसे कहते हैं ना, दुनियादारी से आपका छूटना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सो प्लीज चूज व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड देन डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। आपको योग सर ने कहा था इन कपालभाति कुछ और छोड़ने के लिए, वही मैं जानना चाहता था। तो नहीं, मैंने आपको वो, ठीक है आप कुछ भी करें, हम आपको रोक तो सकते नहीं, मगर मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, डू अकॉर्डिंगली। गुड इवनिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मिस्टर अशोक बोल सर आई एम 47 years old और मुझे एक्चुअली 25 years पहले से ल्यूपस है, एंड साथ में मुझे जल्दी मेनोपॉज हो गया था 44 पे, और 35 years से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अभी मुझे वो सारी चीजें हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ल्यूपस, और इसके साथ ही हाइपरटेंशन, और मुझे पूरा लेफ्ट साइड में बॉडी पेन रहता है और सीवियर, ऊपर मतलब रेडिएट करता है वो पीछे से, आगे से, इधर उधर से, एंड साथ में मेरा मसल लॉस भी हो रहा है, मतलब जैसे
चंक निकल जाता है, वैसा थाई में से एक जगह से निकल गया है। मेरा एक साइड से शोल्डर ड्रूप और ये हाथ का भी मसल लॉस हो गया है सर। तो कैन यू प्लीज टेल मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग? देखो, आई टॉक्ड अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब आप लूपस बोलते हो ना, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी इज टू प्रोटेक्ट यू, इजंट इट? इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट कर, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो गया? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि आप इतना नुकसान कर रहे हो कि बार बार उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब भी आपके होगा तो रीजनरेशन डिजेनरेशन का डिविएशन हो जाता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी बॉडी में रीजनरेशन डिजेनरेशन ठीक नहीं हो रहा, बराबर नहीं है जैसा होना चाहिए। तो अब रीजनरेशन डिजेनरेशन ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा। इन्फ्लेमेशन तो पेन होगा, इन्फ्लेमेशन से पेन हाँ, होता है। हमेशा मेरा ESR हाई आता है सर, हमेशा इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी में। और अभी जुलाई में माइनर कार्डियक अरेस्ट जैसा भी आया था, तो मुझे एडमिट किया था ICU में भी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कार्डियक अरेस्ट भी क्यों आएगा? जब आपके बॉडी का बैलेंसिंग स्ट्रेंथ ठीक नहीं होगा। देखिए, आपके बॉडी में 3 चीजें चाहिए: स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। भाव, राग, ताल। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, डिकोड करिए पता चलेगा। भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, तीनों चीजें जैसे ही बिगड़ती हैं, अगर ये बिगड़ जाए तो इसे ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रूप ले लेगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि आप पुश करें, पुल करें। देखें, किसी चीज को धक्का दें, आप सांस रोक के करते हैं तो सांस रोक के आप स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? एक पांव पे खड़े हो जाइए। टेल समबडी टू पुश यू, किसी को बोले धक्का दें। बैलेंस कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं। अगर आप डांस करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, योगा करें, कोई भी चीज करें, आप अलग अलग अनुपात में पीछे सांस रोकते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी की एक्टिविटी को। रिदम को मैंने बैलेंस करने के लिए आपको भी ब्रेथ होल्ड Sir, I कैपेसिटी was very much active. Sorry to interrupt you in between, but I was very much active and मैंने 9 months में काफी weight भी reduce किया था पहले, almost 18 kgs। लेकिन मुझे 3 times COVID हुआ, उसके बाद post COVID बहुत सारे issues हो गए। एंड मेरे राइट नी में तो इतना प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी स्टेज पे आ गया ये। आई एम जस्ट 47 एंड उन्होंने उसके बाद मेरा एक्सरसाइज भी बंद हो गया सब। ये बात मैं पहले ही ले चुका हूँ। देखिए, कोविड आपको हो गया तो कोविड तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमने तो लोगों को मना किया था कि कोई दवाई नहीं लेना। आप दवाई लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। दवाई नहीं लेने से, दवाई ले लेके लोग क्या बोले, ऊपर पहुंच गए। जिन्होंने दवाई नहीं ली वो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। हमने तो बहुत लोगों को तरीका बताया कुंभ करने के लिए, बोला कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, दवाई नहीं लिया, ठीक हो गए, बिल्कुल फिट हो गए। दवाई लेके जो भी ठीक हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम आ रही है, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो जाता है। पहली बात तो आपको ठीक तो किया नहीं जा रहा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सर बाकी के टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं मेरे। हाँ जी, मतलब बहुत मेजर कुछ नहीं निकलता है टेस्ट में और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। मैंने तो टेस्ट पे ही क्वेश्चन करने के लिए बोला ना आपको, कि आपने ऐसा दिमाग में क्यों बैठा लिया? मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया। नहीं तो सर, मैं नहीं मानती, लेकिन फैमिली में लोग कहते हैं सब लोग फैमिली से कि नहीं आपको तो कुछ भी फैमिली नहीं, को बोलो ना आपको ठीक कर देना, तो फैमिली को बोलो ना ठीक कर। डॉक्टर को क्यों नहीं बोलो? की बात मानते हैं ना आप, तो उनको बोलो ना ठीक कर दें। अपनी सरकार को बोलिए जो कि जबरदस्ती करवाते हैं या एलोपैथी को प्रमोट करते हैं, उनको बोलिए कि आपको ठीक कर दें। या WHO को बोलिए। या दवाई लेते हैं तो दवाई का एक हिस्सा आप हमेशा अमेरिका को देते हैं, चौधरी बनता है वो दुनिया की। केमिकल दवाइयां सारी के सारी कट जाता है, उसका पेटेंट करा रखा बिग फार्मा कंपनी। तो आप उनको बोलते क्यों नहीं है? अगर फैमिली मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये ठीक है, तो आप बोलो मुझे ठीक करो। तुम अगर ऐसा कहते हो तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते, तो बताओ ना। सर करते हैं बट यही होता है ना कि लाइक दे जस्ट गिव अप। वो कह देते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, बस अपनी मतलब लाइक यू नो। तो आपको तो बदलना पड़ेगा कभी ना कभी। हर चीज में तो आप अपनी बात बोलेंगे नहीं, तो वो तो ऐसा कर देते हैं, फिर भी उनकी बात मान रहे। तो आपको तो बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को तो बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
हाँ जी तो सर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक क्या ये ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम को अगर बनाएंगे, आपके बॉडी के अलाइनमेंट अगर आप ठीक कर दें, इसका स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम बढ़ा दें, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। आपके ल्यूपस में बहुत फायदा हो जाएगा। आपके लिवर को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो फिर ये इन्फ्लेमेशन और इस तरीके की चीजें कम हो जाएंगी, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हम अपने प्रोग्राम में जो चीजें सिखाते हैं ना, उसमें कुंभक थेरेपी में एक पूरा पार्ट, 3 पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ओके ओके सर, थैंक आचार्य यू सो जी, मच। स्वामी जी नमस्कार, मुझे बस लास्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नहीं, मुझे अभी शिफ्ट करना है। यू पुट योर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप में, आप डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मुझे दूसरी क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं थैंक आपकी यू सो मच स्वामी जी, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए एंड वील पुट इट अप विद स्वामी जी एंड गेट बैक टू यू। वो हमने लिख दिया मैम। हाँ, वो आप वेबिनार ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें लिख दीजिए। वेबिनार ग्रुप तो मेरे को डाला नहीं है अभी तक, पेमेंट कर चुका हूँ, बट दे हैव नॉट पुट मी इन अनदर ग्रुप। No, they will put you, sir. I'm not talking about that. जिसका क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया है ना, तो आप लोग क्या करिए, वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए, हम लोग उसको स्वामी जी से पूछवा के फिर आपको आंसर दे देंगे। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, नेहा उसको उनको फॉर्म भेज देगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। आपको ग्रुप में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। वेबिनार ग्रुप को कैसे ज्वाइन करने का है मैडम? हाँ सर, वेबिनार ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना सर है? आप वेबिनार ग्रुप में ऑलरेडी हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके अंदर चैट में लिख दिया तो इट्स ओके। हाँ, आप उसमें क्वेश्चन लिख दीजिए, we'll take it up. Okay, thank you so much and good night, stay well, stay happy and signing off. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मैडम।